So in 1 minute, we'll start. The course is full, it's 98 participants. You have a huge fan following, huh? 100. It's 100. We'll start. We'll start when it's 9:30. चलेगा ना ये थोड़ा सा बेसिक लेवल से ही एडवांस जाएंगे हम लोग Yeah. Wait, there is still a minute. No. Normal participant can hear me na. Yeah. So it's 9:30 and let's begin. Hello, everybody. And this is Dr. Priyanka Bansal, and I want to welcome each one of you, and especially Dr. Swapnil, on behalf of European Center of Oral Implantology. I am a prosthodontist by profession, and I am an associate fellow of American Academy of Implant Dentistry and a fellow of German Board of Oral Implantology. And these lectures are organized out of my passion for implant dentistry. And I firmly believe that implant dentistry is for all. And that is what I am striving at. And I would like to welcome our speaker for today, Dr. Swapnil Pandey. Welcome, Dr. Swapnil. Thank you. And I would also like to thank RR Lab for supporting us for this lecture, as Dr. Swapnil is in Hyderabad in RR Lab, and they are going to share all their models and everything with us. So thank you so much, Mr. Ramanna sir, and the entire RR Lab and the team for accepting my request to share your knowledge with us. And something about Dr. Swapnil Pandey. He is a MDS in prosthodontics and oral implantology. He is the head at ARA Dental Lab. He was a trainer for Medit Intraoral Scanner India. And he still is. And he is an expert in digital dental technology in India. So he is very humble. I requested him to give his CV, but he was like, itna sa is enough. And he is such an amazing human being and so knowledgeable in his field. And once I asked him to, share his knowledge with us, and he was so humble and he accepted to share his knowledge so eagerly. Thank you, Dr. Swapnil. And without wasting a lot of time, it's all yours. You can begin with your lecture. Thank you so much once again. So thank you all. First of all, so सबने अपनी practice से और time निकाला, इसलिए सबके लिए thank you from RR Dental Lab and from on my behalf and from RR Dental Lab. So we are going to cover all the option. We are going to cover prosthetic option in this, and little bit, if we have time, we'll cover a little bit of fire and forget. Okay, technique, but basic all the prosthetic option we are going to share. Okay, and a little bit glimpse of fire and forget. So these are from the basics. So too much advanced implantology, I am not going to share over here, because we'll start from the basic. Okay, so when सबसे पहले implantology क्या आती है, तो single tooth replacement was the first, the prosthetic option for single tooth replacement. Okay, so conventional option में सबसे popular option जो होता है वो regular abutment, stock abutment from the company. Stock abutment में कभी भी दो type के abutment आपको मिलते हैं. One is with a shoulder, एक abutment रहता है वो shoulder के साथ रहता है, and one is without shoulder. So like this. These are the two abutments. One is with shoulder. Dr. Swapnil, I'm sorry to interrupt you, but yeah, can you keep your hands near the model, because that is the center of your screen for us. Sorry, yeah. Sorry. So this is shoulder. You can see on the abutment there is a shoulder, and you can you zoom it? Zoom करना ना थोड़ा. Now it's better. Can we remove the model from below? Yeah, maybe some plain background you can hold, some black. Yeah, now it's much better. Thank you so much. So Thank you.
Okay, so if you are giving a abutment with the shoulder, the problem with this is that you have to maintain too much inventory, because जब भी केस आएगा आपको पता नहीं होगा कितने की गम कॉलर होगी. Okay, so गम फॉर्मेट डालते टाइम अगर आपके पास 1, 2, 3 के abutment आपको सारे रेडी रखने होंगे पेशेंट के टाइम पे, so that in this kind of abutment you need to have too much inventory in your stock, and which is difficult to maintain at the initial level. Afterwards, if you have good package, you can maintain, but initial level में ये difficult होता है. So second popular choice is that abutment without shoulder. Generally, vital abutment without shoulder, you can cut the abutment to a height and make your lab can make a shoulder on this. Whatever the impression you take, implant level impression पे lab इसके ऊपर shoulder बना सकती है, and abutment level अगर आप ले रहे हो तो patient के मुंह में भी इस पे shoulder बना सकते हो. So this is advantage of that कि आपको inventory ज्यादा maintain करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें. So most of the companies that's why choose this. Okay. ये कब यूज करेंगे? सबसे पहले आइडियल ऑप्शन रिप्लेसमेंट के लिए, सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट के लिए देयर आर बेसिकली 3 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन स्टॉक अबटमेंट, सेकंड ऑप्शन कस्टम अबटमेंट, थर्ड ऑप्शन इज टाई बेस. ओनली 3 ऑप्शन. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज कस्टम अबटमेंट एंड सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज स्टॉक अबटमेंट, सेकंड ऑप्शन इज कस्टम अबटमेंट. Now I'll talk first little bit about custom abutment, then I'll and then after tie base, and then I'll tell you the difference between these three. So custom abutment is made first from castable abutment. Okay, so in castable abutment we have actually three types of castable abutment. One is full plastic castable abutment. I won't suggest anyone to use that, because जब full castable abutment होता है तो एक problem होती है कि आपका implant का जो metal होता है, implant titanium का होता है, and आपका abutment जो होता है आप nickel chrome में casting करते हो. Okay, so implant to nickel chrome is not better situated portion. मतलब अगर आप strength wise या बाकी सारी चीज wise ले तो nickel chrome implant titanium को fracture करने के chances ज्यादा है. That's so what you mean by full plastic is इसमें जो आपको metal portion दिख रहा है hex का, वो भी plastic का होता है. Just making it clear for everybody. Yes, full plastic abutment I don't have, that's why. That's okay. हाँ, so that full plastic abutment I won't suggest you that. Then castable abutments में means metal castable base जिसका होता है उसका advantages ये होता है कि ये जो hex बनी हुई है, this hex वो company hex होती है. Can you keep it on your hand like this and keep it in the center? Maybe it will be much better like that. And it has to be very stable. Yeah, now it's better. So this hex is milled by the company by its own protocol. जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो हर एक कंपनी की हेक्स और उनके जो डायमेंशंस रहते हैं वो उनके खुद के रहते हैं, उनके मशीन टॉलरेंस खुद के रहते हैं. सो अगर आप जो कंपनी की हेक्स आती है उसके साथ आप कास्टिंग कर रहे हो तो फिट इज मच बेटर एंड आपका इम्प्लांट लॉन्ग लाइफ रहेगा. दैट्स व्हाई ये अबटमेंट होते हैं. इसमें 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट COCR base and titanium base. Okay, so whenever you are going to cast in local metals, आपको COCR tie base लेना है. टाइटेनियम जो बेस होता है, जो कास्टेड में टाइटेनियम बेस वाले जो रहते हैं वो सिर्फ नोबल मेटल के साथ जाएंगे जो इंडिया में नहीं चलते. नोबल मेटल मींस पैलेडियम, गोल्ड, सिल्वर. इसके साथ अगर आप कास्टिंग करते हो तो आपको टाइटेनियम वाले बेस लगेंगे. अगर वो टाइटेनियम बेस वाले अगर आप रेगुलर कोबाल्ट क्रोम या निकल क्रोम के साथ कास्टिंग करोगे तो सेरामिक फर्नेस में ड्यूरिंग लेयरिंग वो फट जाएंगे. इट विल इवेपोरेट. टाइटेनियम में से एल्यूमिनियम, मतलब टाइटेनियम का बेस रहेगा तो यू ऑल यू नो कि टाइटेनियम का जो अलॉय है उसमें एल्यूमिनियम का कुछ कंटेंट है. एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 600 सेल्सियस पे होता है एंड ड्यूरिंग द साइकिल सेरामिक लेयरिंग वो डिसॉल्व हो सकता है. मतलब वो डायरेक्ट आपको वॉइड्स दिखेंगे उसमें टाइटेनियम में. ओके, सो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज प्रिपेयर कोबाल्ट क्रोम बेस with a plastic cap. So this is ideal whenever you are going to make custom abutment for single tooth. Okay. So castable में आपके पास 3 ऑप्शन. Again I will come to 3 options. One full plastic, one titanium base with plastic, third cobalt chrome with plastic. Okay, so इसमें हमको cobalt chrome base with the plastic which is popular option in India. Titanium base आप यूज कर सकते हो, आपको फिर noble metal यूज करने पड़ेंगे. Okay. So these are UCLA abutments, right? This is UCLA abutments. Okay. UCLA abutment का मतलब जिसमें मेटल बेस है उसको UCLA abutment बोलते हैं, एंड जिसमें मेटल बेस नहीं है फुल प्लास्टिक उसको कास्टेबल abutment बोलते हैं. दिस इज UCLA कास्टेबल abutments.
Right. And in India, we commonly, I'm just repeating, in India, commonly we use cobalt chromium, right? With the cobalt chromium base. निकल क्रोम और कोबाल्ट क्रोमियम, बट बेस उसका कोबाल्ट क्रोम होना चाहिए। कोबाल्ट क्रोम बेस आप निकल क्रोम के साथ कास्टिंग कर सकते हो। Got it. ओके, एंड आफ्टर दैट थर्ड ऑप्शन विल कम टू टाई बेस। ओके, सो टाई बेस कितना रहता है? टाई बेस की जनरल हाइट, टाई बेस इज अ टाइटेनियम बेस। एक We मिनट can आपका, keep it like this on your hand. सो इट्स अ टाइटेनियम बेस। इस पे रफ सरफेस बहुत ज्यादा होता है, यू कैन सी द सिरेशन फॉर सीमेंटेशन। ओके, एंड ये सिर्फ 5 mm का रहेगा, मैक्सिमम 5 mm। इसकी हाइट 5 mm से ज्यादा ही नहीं रहती। यू कैन आप इसके ऊपर जो इसकी खासियत ये रहती है, ये 3 वे सिस्टम रहता है। मीन्स टाइटेनियम बेस के ऊपर कस्टम अबटमेंट आएगा या डायरेक्टली क्राउन आएगा और वो सीमेंट होगा। ठीक है, जनरली सारे डिजिटल प्रोटोकॉल्स में आप टाइटेनियम बेस यूज कर सकते करते हो। मीन्स अगर आपको डिजिटल प्रोटोकॉल यूज करनी है, अगर कंपनी रिलेटेड डिजिटल प्रोटोकॉल इंटरऑल स्कैनर्स आप यूज कर रहे हो, तो आपको टाइटेनियम बेस के साथ ही उसको जाना पड़ेगा, बिकॉज इसकी सारी प्रोफाइल्स जो रहती है वो कंप्यूटर में स्टोर्ड रहती है। वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाता है डिटेल में, बट टाइटेनियम जब आपको सिरकोनिया करना होता है या एनी डीएमएलएस कैप करना होता है जिसकी फिट आपको बहुत अच्छी चाहिए, एंड जो भी चीज डिजिटली बन रही है, उस सिनारियो में आप ये चीज यूज करते हो, टाइटेनियम बेस, टाई तो बेसिस। टाई बेस जब लैब वाले टाई बेस मांगते हैं तो दिस इज व्हाट इज अ टाई बेस, राइट? एंड इसके यस, ऊपर जो भी प्रोस्थेसिस आता है, इट इज ऑलवेज सीमेंटेड. यस। The cementation can be done by the lab or by the doctor, preferably by the lab. नो, जनरली प्रिफरली डॉक्टर शुड डू इट। मतलब Okay. हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट एक मिनट, here is zirconia cap with the tie base. Now I can, this is custom abutment with a zirconia custom abutment with the tie base. Okay, so you there will be an anti-rotation groove in it. Okay, Right. so ये एंटी रोटेशन ग्रुप को बहुत केयरफुली देख के, एक सेकंड मैं खुद देख रहा हूँ इसको भी, इसलिए zoom से बाहर लिया। तो ये कोई भी जगह पे जाएगी नहीं, जहां पे वो एंटी रोटेशन ग्रुप रहेगी वहीं पे वो अंदर प्रेस होगा। ठीक है, जहां पे भी एंटी रोटेशन ग्रुव इसमें सेट होगा वहीं पे वो अंदर होगा। सो पेशेंट के मुंह में एक बार ये चेक करके, फिटिंग चेक करके बाद में इसको सीमेंटेशन करना है। दैट इज एडवाइजेबल सिनारियो। ओके, सो व्हेनेवर टाइबेस से आपको कैप करनी है, तो सबसे पहले पेशेंट के मुंह में टाइबेस और ये कैप एक बार स्क्रू इन करके देखनी है। इफ फिटिंग एंगुलेशन वो सारी चीजें बराबर है, देन बाहर निकालना है, इसको सीमेंटेशन करना है, एंड बाद में वापस से स्क्रू इन करना है। But Right. generally, में people depend on lab to cement the tiles, because that's something, sometimes I think that's a very wrong, because lab में क्या होता है, lab में जिनका मतलब लैब में सीमेंटेशन कौन करेगा? लैब का लड़का ही करेगा, लैब का ओनर आके या बाकी कोई आके तो करेगा नहीं। तो जो बंदे होते हैं उनका मेंटल कैलिबर नहीं होता ये सारी चीजें समझने का। ठीक है, सो कौन सी दैट्स सीमेंट यूज करना है डॉक्टर स्वप्निल? जनरली जैसे टाइटेनियम टू जिरकोनिया करना है तो आइडियल सीमेंट इज डीटीके सीमेंट बाय ब्रिडेंट। सो आइडियल सीमेंट में डीटीके सीमेंट है, या फिर रेजिन सीमेंट, कंपोजिट कोई भी, डुअल क्योर रेजिन, मोर देन इनफ, नॉट एन इशू। आई हैव डन दिस थिंग्स इन ये फ्लोएबल रेजिन आल्सो, क्योंकि जिरकोनिया से लाइट पास होता है, एंड टिल दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट डुअल क्योर रेजिन सीमेंट इज आइडियल। एकदम आइडियल सीमेंट लेना है, डीटीके सीमेंट। इट इज डीटीके सीमेंट बाय ब्रिडेंट। इट इज फॉर बॉन्डिंग टाइटेनियम टू zirconia. Zirconia. Yes. And on this now we can to give a screw retained or a cement retained, huh? In this screw retain only, because generally tie base का function क्या होता है? It is a base for your zirconia crown. Right. जनरली जिरकोनिया में हेक्स रहेगी तो वो फ्रैक्चर हो जाएगी, स्क्रू इन करोगे तो फ्रैक्चर हो जाएगी। सो कभी भी जिरकोनिया क्राउन को सपोर्ट करने के लिए तुमको टाइटेनियम हेक्स चाहिए जो इम्प्लांट के ऊपर बैठेगी जाके। दैट्स व्हाई इसकी हाइट जो होती है हमेशा 5 mm होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। बहुत लोगों को लगता है कि दिस हाइट इज नॉट इनफ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग इट, बट ऐसा कुछ नहीं। इसकी कंप्यूटर प्रोफाइल्स जो होती है अंदर देखोगे आप तो इट्स अ वेरी स्नगली फिट। इसकी फिटिंग जो होती है वो कंप्यूटर ओरिएंटेड होती है। डीसीमेंटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं टाइबेसिस में। जो भी टाइबेस यूज कर रहे हैं, पहले लगता है ऐसे कि इसके डीसीमेंटेशन ज्यादा हो गए, बट प्रैक्टिकली अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे, टाइबेस की स्कैन बॉडी आपकी प्रॉपर है, मिलिंग मशीन प्रॉपर है, तो डीसीमेंटेशन के चांसेस बहुत 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 कम है। मतलब 100 आउट ऑफ 1 मेरा एक आधी 100 में एक हाथ का डीसीमेंट कभी हुआ है, उससे ज्यादा नहीं।
पूरा डिजिटल प्रोसीजर के लिए ये काम में आता है। जनरली जो डिजिटल प्रोसीजर रहेगी तो उसमें आपको टाइबेस और जिरकोनिया क्राउन ही सिलेक्ट करने हैं, बेस्ट ऑप्शन है। इंट्राओरल स्कैनर यूजर के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, टाइबेसिस में दो टाइप के रहते हैं, एक इम्प्लांट लेवल रहते हैं और एक मल्टी यूनिट लेवल रहते हैं टाइबेसिस। ओके, सो अबाउट दिस मल्टी यूनिट टाइबेसिस आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। आप सिंगल यूनिट पे भी काम कर रही हैं, ठीक है। टाइबेसिस के ऊपर आप टाइबेसिस के ऊपर कस्टम अबटमेंट आप जिरकोनिया में बना सकते हो। सेकंड चीज, अगर आपको कास्टिंग भी करनी है, अगर आपको कास्टिंग भी करनी है तो कास्टेबल अबटमेंट भी इस पे बना सकते हो। एडवांटेज ये होता है कि आपका जो हेक्स है वो मशीन एंड पॉलिश हेक्स रहता है। क्योंकि जब भी आप अगर ये प्लास्टिक अबटमेंट भी अगर आप लोगे और इसको कास्टिंग करोगे तो कोई ऑक्सीडेशन लेयर इसके ऊपर आएगी, और हमेशा आप सिरामिक फर्नेस में इस पे डालोगे तो हमेशा इस पे एक ना एक ऑक्सीडेशन लेयर चढ़ेगी, उतरेगी, पॉलिश करने में डैमेज होगी। सो अगर आप डिजिटल प्रोटोकॉल से डीएमएलएस में क्राउन बना रहे हो तो भी ये ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि बिकॉज आपको हमेशा पॉलिश पॉलिश कॉलर और हेक्स हमेशा मिलेगी इम्प्लांट के लिए। मैन्युअली पॉलिश करने की जरूरत नहीं। मैन्युअली पॉलिशिंग में क्या होता है, कभी कभी बहुत बार हेक्स टेक्नीशियन लोग मैनुअल पॉलिशिंग में घिस देते हैं। सो आपका फिर क्राउन क्या है, लॉन्ग टर्म में आपको मोबिलिटी या प्रॉपर फिटिंग नहीं आती। जो कंपनी ओरिएंटेड फिटिंग है दैट विल बी लॉस्ट। ओके, सो नाउ There these is a basic question. Which one do you suggest, sir? Tie base or castable cobalt chromium? tie base. Okay. टाइबेस इज फॉर डिजिटल। आई ऑलवेज सपोर्ट द डिजिटल प्रोटोकॉल। फिटिंग जो रहती है डिजिटल में बहुत ज्यादा अच्छी रहती है फिटिंग आपकी, एज वेल एज जैसे इसकी कोबाल्ट का ऊपर By digital, you mean the processing of the crown is made digitally? प्रोसेसिंग ऑफ द क्राउन इन डिजिटल। जैसे डीएमएलएस पीएफएम में बनाना है तो डीएमएलएस, अगेन देयर आर टू काइंड्स ऑफ, जैसे पीएफएम के ऑप्शन हम लोग बात करते हैं, सब लोग कैडकैम पीएफएम और डीएमएलएस पीएफएम बोलते हैं। सो कैडकैम पीएफएम इज जनरली मिथ मींस कैडकैम पीएफएम में मोस्ट ऑफ द लैब 90% लैब व्हाट दे विल डू, दे विल मिल इट इन वैक्स और प्रिंट इट इन वैक्स एंड देन कास्ट इट। सो जितने भी कास्टिंग एरर तुम्हारे मैनुअल में वो उसमें रहने वाले हैं। तो प्योर डिजिटल अगर कुछ चाहिए तो डीएमएलएस के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। Right. हाँ, so what is the difference between index and non-index abutment? So always use अभी index abutment. Index means either flat surface or either there is a groove, engaging groove in this tie base. Okay, अब बहुत बार ऐसे होता है, you see this kind of abutment. Okay, इसमें एक surface flat है, अगर आप देख पाओ नहीं तो। दिख रहा है. You'll have to hold it on your hand. On your palm, maybe. हाँ, there is a flat surface. Yeah, Okay, it can be so seen. अगर आप ये अबटमेंट को यहाँ से काट दोगे तो नीचे के सरफेस में कहीं फ्लैट सरफेस नहीं है, नीचे कहीं फ्लैट सरफेस नहीं, नीचे पूरा राउंड है। Right. ओके, सो बहुत बार लोग क्या करते हैं, ये अबटमेंट यहाँ से काट देते हैं एंड इसके ऊपर क्राउन सीमेंटेशन करोगे तो दिस इज राउंड पॉलिश सरफेस, ये डिसीमेंट हो सकता है, क्राउन लूज हो सकता है। तो आई ऑलवेज प्रिफर, हमेशा आप अबटमेंट कटिंग करोगे तो नीचे का फ्लैट सरफेस नहीं होगा, आप एक सरफेस को फ्लैट करो, ग्रू नहीं करना। ग्रू करोगे तो लैब, इट इज डिफिकल्ट फॉर लैब टू ग्रू को मेंटेन कर पाना, बिकॉज अगेन लैब में टेक्निक सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। फिटिंग करने के लिए जो लड़का बैठता है वो क्या करता है, बिकॉज आई हैव बीन टू अ लैब साइड एंड क्लिनिकल साइड बोथ, फिटिंग करने के लिए लड़का जो बैठता है उसको कोई लेना देना नहीं आपका काम क्या है, उसको 6 बजे घर पे जाना होता है। सिंपल, टेबल पे रखा काम, कैप फिट होनी चाहिए, टाइट फिटिंग हो ढीली फिटिंग हो, डजेंट मैटर फॉर हिम। ओके, जनरली बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आप कंप्लेंट करोगे, ढीली फिटिंग है, कंप्लेंट करोगे, दे विल टेक अ प्लायर एंड प्रेस द ग्राउंड, लो सर टाइट फिटिंग हो गया, ठीक है। सो दे लिटरली टेक अ हैमर एंड हैमर इट अ लिटिल बिट, सर देखो अभी टाइट हो गया ना इसको, ठीक है दे दो सर, आप डॉक्टर को दे दो, टाइट हो गया, ठीक है। आपका क्राउन एंड ब्रिज भी, अगर आपका क्राउन एंड ब्रिज भी रेगुलर आप करते हो और आप कंप्लेंट करते हो कि ये ढीला है बहुत, इसको थोड़ा सा रिटेंटिव बनाओ, दे विल टेक अ हैमर एंड लिटिल बिट हैमर इट आउट, उसको थोड़ा सा या प्लायर में लेके दबाएंगे, सर अब दे देना, डॉक्टर बोलेगा अभी टाइट है। तो अगर ये सिचुएशन रहती तो क्या होता है कि आप अगर ग्रू दोगे तो उसको राउंड ऑफ करने वाला है वो, दैट्स व्हाई ऑलवेज गिव अ फ्लैट पैरेलल सरफेस, ये पैरेलल सरफेस को कट करने के बाद आप एक्सटेंड कर लो। ओके, so this is for single. Now for single abutment there are three things again. First, stock abutment,
सेकंड कास्टेबल अबटमेंट, थर्ड इज अ टाई बेस। ठीक है, कास्टेबल अबटमेंट वेरी प्रेफरेबल बिकॉज बहुत सारे एरर उसमें आने हैं एंड ऑलवेज हेक्स ऑलवेज हैज टू बी पॉलिश। कितनी भी कास्टिंग कोबाल्ट क्रोम की कर लो, बाकी किसी चीज भी को पॉलिशिंग में कहीं ना कहीं वो टॉलरेंसेस वैल्यूज जो है वो लॉस्ट होनी है एंड आपको प्रॉपर फिटिंग नहीं मिलनी है। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस अबाउट सिंगल Questions यूनिट? we'll take later, please. Okay, so single tip will Let's go. proceed. Let's proceed with the. So Everybody, you can start typing your questions in impression. the chat Okay, box, sorry. please. Now impression taking. First of all, single tooth impression taking. There are three types of basically abutments. First, this is a closed abutment. Closed abutment में कभी आपको wide कोई portion नहीं मिलेगा, वह insertion के लिए हमेशा complete रहेगा. This abutment is a dual kind of abutment. Dual kind means इसमें long screw अगर डाल देंगे तो ये open tray हो जाएगी, इसमें short screw डाल देंगे तो ये closed tray हो जाएगी. इसमें wide angles नहीं होते, ये impression से निकलती easily है, press easily हो जाती है। ठीक है, थर्ड इज अ प्योरली ओपन ट्रे अबटमेंट। प्योरली ओपन ट्रे अबटमेंट विल बी लाइक दिस। ये कभी इंप्रेशन से बाहर नहीं निकलेगी, आप कितनी भी ताकत निकालो इंप्रेशन को फाड़ के निकलने वाली। सो आई ऑलवेज प्रिफर टू हैव ओपन ट्रे इंप्रेशन फॉर एवरी केसेस एंड विथ जनरली दिस काइंड ऑफ वाइड विंग्स इंप्रेशन एनालॉग। Okay, so this impression analog will lock into your putty material very easily and उनमें tolerances नहीं होंगे। आप जनरली बहुत बार ऐसे होता है कि ये impression analog है, ये implant analog लगाया, अगर आपका impression analog अगर आपका जो है and this is the long screw, so this is the screw, long screw, so this screw is a dual type of screw। posterior position में आप हाथ से इसको क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो एंड इसमें हेक्स भी डाल सकते हो। so this is very easy system। So generally, We'll take questions later, Dr. Swapna. okay. So even from the chat box. yes. So this जब भी इंप्रेशन आप लोगे तो ये जो वाइड पोर्शन है, ये वाइड पोर्शन जो है ये इंप्रेशन में आपके पट्टी इंप्रेशन में लॉक हो जाएगा। जनरली विच मटेरियल हैज टू यूज दिस इज बायोलाइन ओपन ट्रे इंप्रेशन। ओके, नहीं किसने पूछा? ओके, सो जनरली इंप्रेशन मटेरियल ए सिलिकॉन और सी सिलिकॉन, जनरली ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है। आइडियल ऑप्शन अगर थ्योरेटिकली जाए तो ए सिलिकॉन। हाँ, पॉलीथर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जब इडेंचुलस केसेस में पॉलीथर इज द बेस्ट ऑप्शन। I use polyether with open tray always. It's rigid, right? पॉलीथर सबसे अच्छा है, बट हाँ, इट्स वेरी रिजिड। जनरल जितना रिजिड मटेरियल रहेगा उतना ज्यादा अच्छा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। इट इज नॉट अबाउट ए सिलिकॉन और सी सिलिकॉन और विच सिलिकॉन इट इज, इट्स अबाउट हाउ हार्ड इट इज। बिकॉज जितना ज्यादा हार्ड होगा आपका सॉफ्ट सिलिकॉन, बहुत सारे लोग सॉफ्ट सिलिकॉन यूज करते हैं, तो मैंने सॉफ्ट सिलिकॉन में एक प्रॉब्लम देखी है। एक्स्ट्रा सॉफ्ट सिलिकॉन जो यूज करते हैं इंप्रेशन के लिए, व्हेनेवर इंप्रेशन में आपका डिजिटल एनालॉग लगाने के बाद आप प्लास्टर पोर करते हो, थोड़ा सा प्लास्टर भी ज्यादा हो गया तो प्लास्टर के वजन से आपका इंप्रेशन एनालॉग का पोजीशन चेंज हो जाता है, बिकॉज नीचे जो सिलिकॉन है आपका वो सॉफ्ट है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, तो आपकी पोजीशनिंग जो है वो चेंज हो गई। सो आप कितना भी हाई एंड मटेरियल यूज करो, आप कितना भी अच्छे से इंप्रेशन लो, कितनी भी आप उसमें ध्यान रखो, बिकॉज प्लास्टर के वजन से, सॉफ्ट सिलिकॉन की वजह से आपके इंप्लांट की पोजीशन चेंज होने वाली है, तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी पेशेंट के मुंह की पोजीशन और लैब वाले को जो कास्ट में मिलने वाली है वो पोजीशन दोनों चेंज हो गई है। ठीक है, सो यू कैन नॉट ऑलवेज ब्लेम द लैब कि मैंने इंप्रेशन बहुत ठीक से लिया था, तूने गड़बड़ की थी। दिस इज अ फैक्टर, वो किसी के ध्यान में नहीं आएगा, बहुत केयरफुली कोई देखेगा तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, थर्ड दिस ऑस्टियम काइंड ऑफ, ये जो ऑस्टियम की रहती है ये लैटरल विंग के साथ रहती है, ये भी बहुत अच्छी रहती है, बट दिस गिव्स अ यूनिलैटरल स्टेबिलिटी एंड दिस गिव्स अ बायलैटरल स्टेबिलिटी। ओके, सो anyone open tray, always open tray, single unit, multiple unit, full mouth case अगर manual impression लेना है तो open tray लेना है। Yeah, I also do the same unless the mouth opening is very less and we don't have the possibility of putting an open tray in the posterior area is not possible. Mouse opening is very less, it's a very good option, you can open it with your hand। इसमें दो मिलती है, ये long है, एक short भी मिलती है with the same sometimes still उसमें तो scan interval scan भी better है। हाँ, right. We will be taking all the questions towards the end.
But So you can single unit के लिए you can still type it in the tab chat box. एनालॉग्स जो लगेंगे, एनालॉग्स में दो टाइप के एनालॉग्स है. वन इज अ डिजिटल एनालॉग, वन इज अ रेगुलर एनालॉग. रेगुलर एनालॉग और डिजिटल एनालॉग में फर्क ये होता है कि रेगुलर एनालॉग और डिजिटल एनालॉग में फर्क क्या होता है. डिजिटल एनालॉग में कोई भी अंडर रोटेशन सरफेस नहीं होता है. मींस यहाँ पे कहीं पे भी लॉकिंग सरफेस ज्यादा नहीं होते. ये इजीली कास्ट के ऊपर जाने चाहिए. ठीक है. एंड जो मैनुअल एनालॉग रहता है, मैनुअल एनालॉग में आपको लॉकिंग सरफेस मिलेंगे जहां पे ये कास्ट में लॉक हो जाए. ठीक है. सो दीज आर द टू टाइप ऑफ एनालॉग. सो जनरली बहुत सारी कंपनी में डिजिटल एनालॉग की प्राइस ज्यादा रहती है, रेगुलर एनालॉग की प्राइस कम रहती है. So again, entering into digital entries dentistry is sometime a costly affair because आपका जो जनरल एनालॉग है, जो जनरल एनालॉग आपका रेगुलर एनालॉग आपको 500 करेगा, वो डिजिटल में चल जाएगा तो आपको 1100 रुपए करेगा. सो समटाइम्स डिजिटल डेंटिस्ट्री में जब भी आपको जाना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. बट पुटिंग इनटू दिस इज वेरी इजी. So this is how your cast is poured. Generally 5 minutes job and so much perfect than regular one. This is a 3D printed model, right? Yes, this is a digital analog and 3D printed model. It gone very swiftly and accurate positioning इसकी रहती है. हिलने के chances नहीं रहती है, mobility की चीज नहीं रहती है. So always digital का बहुत सारा advantage. We'll cover it later. Sorry to interrupt you, Dr. Swapnil. So once I'm just asking these questions for benefit of everybody. So this model that is printed, it is printed with the holes for the digital. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है. The models that are printed with a space for the analog, and after it is printed, then the analog is pushed in that space, right? हाँ. Okay. Thank you. This is pushed and वापस से निकालना है. आप इसको नीचे से पुश करो, ये वापस निकल जाएगा. So it's out. Got it. So very easy system. आप आपके कास्ट मॉडल, आप मतलब डिजिटल का फायदा ये है, आपको 2 या 3 एनालॉग भी रहेंगे. जैसे फुल माउथ का केस करना है, 3 एनालॉग भी रहेंगे, आप पूरी केस कंप्लीट कर सकते हो. साइमल्टेनियसली 10 केसेस कंप्लीट कर सकते हो. आपको रेगुलर में करना है, आपकी 10 केसेस रहेगी, आपको सारे एनालॉग लेने जरूरी है. इसमें एक मॉडल से एनालॉग निकाला, दूसरे मॉडल में डाला, दूसरे मॉडल से एनालॉग निकाला, तीसरा मॉडल में डाला, यूज कर लिया. सो आपने 5 एनालॉग लैब को दे दिए, आपने दिया, आपका काम हो जाएगा. सो नाउ थर्ड सिस्टम इज अ डिजिटल सिस्टम. डिजिटल सिस्टम में थर्ड सिस्टम जो आती है इंप्रेशन की, दैट इज अ स्कैन बॉडी सिस्टम. ओके. सो दिस इज लाइक डिजिटल इंप्रेशन एनालॉग. ओके. जैसे मैनुअल में हम लोग ओपन ट्रे क्लोज ट्रे करेंगे, तो थर्ड पोर्शन इज डिजिटल एनालॉग. सो दिस गिव्स पोजीशन ऑफ इम्प्लांट डिजिटली. जब भी इंट्राओरल स्कैनिंग करना है, ये आपको सारी काम में नहीं आएगी. यू हैव टू परचेज दिस. अगेन प्राइस डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज गोइंग टू बी देयर. इफ यू वांटेड टू एंटर इनटू डिजिटल डेंटिस्ट्री, इसकी प्राइस 1100 रुपए रहेगी, इसकी प्राइस 2500 रहेगी. ठीक है. Now we'll come to a multiple system. We'll come to a multiple implant system. The thing, multiple unit में आपके पास We have 15 more minutes, Dr. Swapnil. 15 more minutes only. Yeah. Okay. That is why I'm trying to tell you. This we have to care. Okay. Or else we can have a part 2 of the lecture, or if everybody is okay, Okay, we can I'll go on clear. for half an hour more. Like you can speak till 10:30, and we can have okay. you can speak for half an hour more, and then we can have question answers from 10:30 to 10:45. Okay. That is the other option. हाँ, मल्टीपल में जब मल्टीपल सिस्टम्स जब होती है, नाउ विल गो टू 2 और 3 इम्प्लांट ऑप्शंस. तो 2 और 3 इम्प्लांट ऑप्शन के लिए आपको नॉन एंगेजिंग जो ऑप्शन रहता है, वो सबसे बेस्ट रहता है. नॉन एंगेजिंग ऑप्शन. ओके. Non-hex. तो नॉन हेक्स नॉन एंगेजिंग. कास्टेबल में 2 टाइप के आएंगे, एंगेजिंग और नॉन एंगेजिंग. सो जनरली नॉन एंगेजिंग का फायदा ये होता है कि इट इज वेरी इजी टू रिट्रीव द प्रोसेसेस. ओके. सो एंगेजिंग में हेक्स क्या होती है, आपकी अगर क्राउन आपने एससीआरपी दिया है या बाकी कोई चीज दी है, तो इट इज आपके एंगुलेशन थोड़े से भी डिफिकल्ट रहेंगे, तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव. बट आपका नॉन एंगेजिंग रहेगा, आपने स्क्रू रिमूव किया एंड यू कैन इजीली रिमूव इट. दिस इन माय हैंड इज अ नॉन एंगेजिंग एंगुलेटेड अबटमेंट. ये यूज करना है तो बहुत कॉशियस, मेरे हाथ में इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जनरली इसको जब भी यूज करना है, बहुत कॉशियसली यूज करना है, बिकॉज ये आपने लगा के, ये आपने लगा के अगर प्रोसेसेस बनाए हैं,
तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के मुंह में रख के ही आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। या एक बार प्रोसेस बनाया तो जिग के साथ इसको प्लेस करना पड़ेगा, एंड वो जिग अगर आपकी गुम गई या फ्यूचर में आपको प्रोसेसेस निकालना पड़ा तो ये वापस उसी पोजीशन पे नहीं जाने वाला, ये वापस उसी पोजीशन पे नहीं जाने वाला, इसकी पोजीशन थोड़ी सी भी घूम गई तो आपका बनाया प्रोसेसेस वापस नहीं बैठने वाला है। सो नॉन एंगेजिंग यूज करते वक्त माय सजेशन इज दैट ऑलवेज यूज स्ट्रेट अबटमेंट, स्ट्रेट नॉन एंगेजिंग अबटमेंट एंड कट दोज अबटमेंट। आप उसको कट करो वर्टिकली सो दैट आप सेम अबटमेंट बार 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 आप यूज कर पाओगे। ओके, कट करने का लॉजिक आई डोंट अंडरस्टैंड। जैसे अगर आपने एंगुलेटेड, अगर आपने एंगल में कट किया, वो एंगल आपका अगर बाद में ऐसे हो गया, नेक्स्ट अगर आपको कभी जिंदगी में प्रोसेसेस निकालना पड़ा, रिट्रीव करना पड़ा और आपका एंगल चेंज हो गया, तो सेम प्रोसेसेस वापस फिट नहीं होगा। और आपने आपका अगर स्ट्रेट नॉन एंगेजिंग अबटमेंट है और आपने स्ट्रेट कट किया, स्ट्रेट नॉन एंगेजिंग अबटमेंट है, आप सॉरी आई एम नॉट, स्ट्रेट नॉन एंगेजिंग अबटमेंट है, आपने कट किया और आप कैसे भी घुमाओगे वो वैसे ही घूमेगा, आपका सेम प्रोसेसेस फिट हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेसेस आपका उसके ऊपर। ओके, So you're saying to cut the angled abutment. no, angle abutment you don't cut, you can cut angle abutment but generally angle abutment नहीं यूज करना है, आपको स्ट्रेट abutment ही यूज करना है, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन इज टू यूज डीएमएलएस स्क्रू रिटेंट, सो बेस्ट ऑप्शन इज टू यूज डीएमएलएस स्क्रू रिटेंट। इसमें एक चीज हमेशा लैब में मैंने देखी है, लोगों को ये पता नहीं, डीएमएलएस स्क्रू रिटेंट जब नॉन एंगेजिंग करते हैं इसकी हेक्स हमेशा छोटी रहती है। जब भी आप एक्सरे लोगे, जब भी आप एक्सरे लोगे तो एंगेजिंग की हेक्स आपको ज्यादा बड़ी दिखेगी, नॉन एंगेजिंग की हेक्स आपको एक्सरे में छोटी दिखेगी। तो इस बात की ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज ये कंपनी उसी हिसाब से डिजिटल प्रोफाइल्स बनाती है, क्योंकि आपका एंगुलेशन थोड़ा सा भी टेढ़ा है तो भी ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा। सेकंड चीज, बहुत बार मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एडवोकेट करते हैं कि एक हेक्स एंगेजिंग रखो, एक नॉन एंगेजिंग रखो। जनरली आई डोंट एडवाइस यू, प्रॉपर नॉन एंगेजिंग रखो। बुक में, कोई भी बुक में ऐसे एक हेक्स एंगेजिंग एक हेक्स नॉन एंगेजिंग रखने का कोई सिस्टम दिया नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका एक हेक्स एंगेजिंग रहेगा ना तो दूसरा इम्प्लांट हमेशा थोड़ा फ्री रहेगा और एक इम्प्लांट पे हमेशा प्रेशर रहेगा, ठीक है। So for a bridge, always use a non-engaging abutment, right? हाँ, सो 3 यूनिट के लिए सेकंड चीज, अगर आपको, हाँ, नॉन एंगेजिंग ऑलवेज, अगर आपको स्क्रू रिटेन करना है तो नॉन एंगेजिंग करना है। अगर आपको सीमेंट रिटेन करना है, सीमेंट रिटेन करना है तो आप कस्टम अबटमेंट भी बना सकते हो। टाइटेनियम कस्टम अबटमेंट थोड़ा सा कॉस्टली फिर हो जाता है। टाइटेनियम ऑलवेज कस्टम अबटमेंट, अगर मल्टीपल यूनिट्स के लिए अगर आपको सीमेंट रिटेन करना है तो ऑलवेज प्रीफर टाइटेनियम कस्टम अबटमेंट रादर देन कोबाल्ट क्रोम कस्टम अबटमेंट। अब कस्टम अबटमेंट में 2 टाइप के रहते हैं, टाइटेनियम एंड कोबाल्ट क्रोम। ओके, डायरेक्ट लेयरिंग अगर करना है आपको तो कोबाल्ट क्रोम प्रेफर करो। डायरेक्ट हेक्स पे आपको लेयरिंग करना है, हेक्स या नॉन हेक्स पे डायरेक्ट लेयरिंग करना है तो आप कोबाल्ट क्रोम प्रेफर करो। बट आपको लेयरिंग नहीं करनी है, आपको कस्टम अबटमेंट बनाना है। कस्टम अबटमेंट इज लाइक दिस। सो नाउ आई विल शो यू द कस्टम अबटमेंट। कस्टम अबटमेंट इज लाइक दिस, कि आपका क्राउन कटिंग किया हुआ जैसे रहेगा वैसे आपके पास आ जाएगा। इट्स अ वेरी इजी टू यूज। मतलब जनरली अगर आप स्क्रू रिटेन करने जाओ, बाकी सारी सिस्टम करने जाओ तो उसमें हैसल बहुत रहते हैं। एक टेक्निक सेंसिटिव रहती है कि आप इसको करोगे, मतलब स्क्रू फिटिंग बराबर आएगी, कहीं एंगेजमेंट आया, कुछ आएगा, आपके कास्टेबल अबटमेंट वेस्ट जाएंगे, आपका लैब चार्जेस वेस्ट जाएगा, प्रोसीजर पूरी रिपीट करनी पड़ेगी, पेशेंट के सामने पेशेंट 4 बार पूछेगा इतनी बार मुझे क्यों आना पड़ रहा है। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कस्टम अबटमेंट प्रीफर करते हैं। इसको आपने सीमेंट कर दिया, सो व्हाट यू हैव इज अ क्राउन कटेड टूथ विच इज आपका रेगुलर डे एंड नाइट वर्क है। आपको रात को नींद में भी आपका असिस्टेंट भी इससे इंप्रेशन ले लेगा एंड क्राउन एंड ब्रिज डिलीवर कर देगा। तो आपको टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर से आपकी चली जाती है। ओके, So for custom abutment, what are we supposed to give the lab? एक इम्प्लांट लेवल इंप्रेशन तो आपको देना पड़ेगा, बट उस पर स्प्लिंटिंग करने की जरूरत नहीं, टू मच एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, उतना टेक्निक सेंसिटिव नहीं है। So no abutment I'm supposed to give, no tie base, nothing. No, they will mill it from titanium. Lab will mill it from titanium. Custom And is abutment. the hex part accurate? Yes, because titanium, generally what lab will do it from the block which is provided by the company. Lab वालों के पास block रहता है जिसकी hex company वालों ने mill करके दी होती है. So they will only mill the crown portion of it. Hex portion company से आया रहेगा उनके पास. So dynamic type जो रहते हैं वो भी रहेगा उसमें. And then on this we can either cement something or हाँ, what you to can cement. That is the question. What is the Regular protocol? GIC से भी सीमेंट करोगे तो भी चलेगा, like this. So this is a SCRP. हाँ,
SCRP नहीं, दिस इज कस्टम अबटमेंट पे, हाँ SCRP समझ लो आप, Screw सिंपल cement retain. स्क्रू सीमेंट रिटेन। तो मल्टीपल यूनिट के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट, रेगुलर अबटमेंट यूज करो, हेक्स टू हेक्स कनेक्शन वाले अबटमेंट यूज करो। आपके अगर एंगुलेशन स्ट्रेट है, अगर आपका एंगुलेशन स्ट्रेट है तो आप हेक्स टू हेक्स वाले अबटमेंट यूज करो। अगर आपका एंगुलेशन बहुत ज्यादा वियर्ड है तो इजी रिट्रीवल के लिए आप नॉन एंगेजिंग अबटमेंट सिलेक्ट करो। थर्ड, आपका एंगल बहुत ज्यादा वियर्ड है तो आप टाइटेनियम मिल्ड बेस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो 3 ऑप्शंस। So this is for multiple unit. Now we'll come little bit to full mouth options. थोड़ा सा, ठीक है। So in full mouth we have many things to show and very less time to explain. So that's why I'm little bit मैं मेरे पास में रमन्ना बैठा, वो हर एक चीज लाके दे रहा है, उसको ये बोल रहा हूँ कि full mouth option हम दिखाते हैं। I'm more interested in showing you full mouth option. तो Thank you, Mr. Ramanna. Thank you for your support. You must also come and say hi. Yes. हाँ, hi. Hi, how are you? Hello, I'm good. Hope all Thank you are. so much. Thank you so much, Mr. Ramanna. Oh, sure, madam. We are very pleasure to be show all these things. Thank you. You have always been very Anytime. supportive and very helpful. Thank you. Sure, madam. We'll definitely do it. Thank you, everyone. So this is a regular hybrid bar. Okay, so this is the heads for engagement of your acrylic. इसके ऊपर acrylic बहुत अच्छे से engage होगा. So this is a regular bar. जहाँ पे भी आपको बार कहाँ पे देंगे, जनरली जहाँ पे भी वर्टिकल हाइट बहुत ज्यादा है वहां पे बार देना है। जब आपके पास हाइट कॉम्प्रोमाइज है तब आप हाइब्रिड भी नहीं देना है, बिकॉज हाइब्रिड डेंचर में बेसिकली 3 जंक्शन आते हैं। फर्स्ट जंक्शन विल बी द इम्प्लांट द बार टू एक्रिलिक, सेकंड जंक्शन विल बी एक्रिलिक टू टीथ, थर्ड जंक्शन आपका बार जो रहेगा इम्प्लांट पे रहेगा। तो 3 जंक्शन रहते हैं। तो आपका प्रेशर अगर ज्यादा हुआ, नीचे एक्रिलिक की थिकनेस कम हुई तो आपका एक्रिलिक फ्रैक्चर होगा, कभी दांत फ्रैक्चर होगा। अगर दांत घिस के ज्यादा बिठाया तो वर्टिकल कम रहेगी, तो आप इसको नहीं देना है। जनरली 1 आंच के लिए 15, आइडियली 25 के ऊपर रहेगा तो आप हाइब्रिड दो। इंटर आई डिस्टेंस मतलब अपर एंड लोअर में 25, 30 के ऊपर रहेगा तो बहुत कॉन्फिडेंटली आप हाइब्रिड दे सकते हो। Hybrid means acrylic that is fused to metal. हाँ, That is acrylic hybrid for fused to metal. everybody. हाँ, जनरली हाइब्रिड डेंचर में बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, बिकॉज द इम्प्लांट, फुल माउथ इम्प्लांट इज सपोज टू बी वेरी लाइट ट्रीटमेंट, एंड हाइब्रिड डेंचर में बिकॉज ऑफ द जंक्शन बहुत बार ऐसे होता है दांत टूट जाता है, पेशेंट का फ्रैक्चर हो जाता है, एक्रिलिक फ्रैक्चर हो जाता है। एंड 1-2 साल में हुआ तो पेशेंट समटाइम्स थिंक्स कि डॉक्टर ने मेरे को लूट लिया, कि मैंने 2 लाख रुपए खर्चा किया और मेरा दांत टूट गया, एकदम गंदे क्वालिटी का दिया। पेशेंट का ज्यादा टेंशन नहीं रहता, पेशेंट के साथ उसके रिलेटिव आ जाते हैं, इतना पैसा खर्चा किया, फिर मेरे चाचा के, ताए के, नाना के भतीजे का तो नहीं टूटा, मेरा ही कैसे टूटा। फिर डायलॉग मारे, अरे नहीं डॉक्टर साहब आपकी गलती नहीं है, भाई नसीब खराब। सो 2016 से मैंने हाइब्रिड डेंचर देना बंद कर दिया, वॉट एवर इट इज, नो हाइब्रिड्स एट ऑल। So that is what principle I made in my practice. But again, when vertical is good and economy doesn't permit you, it's a good option. It's a good option. Now, second thing is hybrid. In the hybrid, we have modified the bar. So in the hybrid, main issue hybrid में क्या था, acrylic fracture का था। So we have modified the bar so that उसके अंदर बहुत सारा acrylic जो है वो बार में मिजियोडिस्टली, बकोलिंगुअली वो मेश के अंदर एकदम फर्म रहे, एंड एक्रिलिक डिसलॉजमेंट या टिथ डिसलॉजमेंट इसमें से ना हो। सो दैट्स व्हाई वी मॉडिफाइड द बार। सो दिस बार कैन बी मेड आल्सो, आइडियल मटेरियल फॉर दिस बार इज अ टाइटेनियम, बिकॉज टाइटेनियम में यू कैन सी द पिंक कलर ऑन दिस। No. Yeah, I mean, I can see a slight shine, a pink shine. सो ये कैमरा की वजह से नहीं दिख रहा है, वैसे ये पिंक कलर है। सो दिस इज अ मेटल कलर एंड दिस इज पिंक कलर। सो पिंक एनोडाइज बार आता है, पिंक एनोडाइज बार से जो एक्रिलिक का कलर है वो जनरली ये हो जाता है, जनरली मास्क हो जाता है। सो वजन के बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है वजन का, कि बार के वजन में टाइटेनियम विच इज बेटर, टाइटेनियम और दिस वन। सो टाइटेनियम जनरली वजन में ज्यादा फर्क नहीं होता टाइटेनियम बार के, वो वेट देना, वेट गेज पे मैं आपको बार के वजन दिखा देता हूँ। बट आइडियली टाइटेनियम बार ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज इसकी इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ जो होती है वो बोन के इक्विवेलेंट रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल। So this is which one? हाँ, एक सेकंड, दिस वन इज टाइटेनियम वन, 3.58 ग्राम। Yeah, we can see it. Okay.
3.65. 3.65. Okay. And This is which one? this is cobalt chrome, Is generally 14 gram. Okay. सो वजन में ड्रास्टिक ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इसका जो डेंचर आएगा वो 30 डेंचर के साथ एक्लाइजेशन के साथ 30 ग्राम आएगा, और इसका जो आएगा एक्लाइजेशन का वजन सेम रहेगा, 20 ग्राम रहेगा, 10 ग्राम का डिफरेंस रहेगा, विच इज नॉट मेजर. देन वी हैव वन इनोवेटिव ऑप्शन. हाँ, सो दिस इज bar in which you can give this is PIC or PMMA. So this is milled PMMA. Generally bar के ऊपर milled PMMA. So the this is a bar which you fixed once, okay, and you can fit the PMMA over it. And if anything happens, fracture happens, something happens, generally in 3 parts also we can give it. We can easily replace these things. And if this problem is arising, अगर आपको HIPC यूज करना है, हार्डर मटेरियल यूज करना है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं. और इसके ऊपर अगर आपको बाद में जिरकोनिया भी लगाना है, सो ये बार आपने फिक्स कर लिया, फिर इसके ऊपर आपको PFM भी लगाना है, तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर इंप्रेशन लो और PFM लगा दो. It may not fit because this is not from this, अलग बार है, but ये PFM बार के ऊपर आप लगवा सकते हो. ठीक है. Second thing is that over this bar a good material is PIC. So this is PIC and composite layered. PIC हमेशा PIC जो मटेरियल है, न्यूअर मटेरियल है, बहुत लाइट वेट रहता है. इसका वजन मैं आपको बताता हूँ. इट्स नील, लगभग ये हवा की तरह हाथ में फील होता है कि आपने हाथ में कुछ लिया ही नहीं है. एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, वेरी स्ट्रॉन्ग. So 9 ग्राम टोटल. सो टाइटेनियम का बार के साथ पूरा 13 ग्राम का रहेगा ये. ओके. सो फुल प्रोसेस इज PIC बार के साथ 13 ग्राम का रहेगा. 13 ग्राम मतलब कुछ भी नहीं है. So now this I'll show you one more. So these are two modification which you have made. This is ident bar and this is ident processes. Generally consultant, मतलब जो अपनी जगह से, बहुत सारे लोग जो रहते हैं, ओरल सर्जन्स रहते हैं, इम्प्लांट करने वाले रहते हैं, वो बहुत जगह पे कंसल्टेशन के लिए जाते हैं. एंड इकोनॉमी परमिट नहीं करती कि बार बार वो जगह पे जाए. These are all modification for ident bar. So once you go, you fix this up. Once you go, you fix this up. Now you made this for a resident dentist like crown and bridge thing. So आपने इसको एक बार फिक्स कर दिया, आपका काम खत्म. नाउ रेसिडेंट डेंटिस्ट कैन वेरी वेल, मतलब जब उसको इम्प्लांट दिखेंगे, अगर उसको इम्प्लांट दिखेंगे तो वो डर जाएगा. वो बोलेगा सर मेरे को इसमें से पता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता. एनीवन जो इसमें नॉलेजेबल नहीं है, बट उसको ये पोर्शन दिख गया, आपने ये लगा दिया, सो इज वेरी वेल कॉन्फिडेंट, सर कोई टेंशन नहीं है, आप जाओ, इसके ऊपर मैं क्राउन एंड ब्रिज लगा दूंगा, इसके ऊपर 3 पार्ट्स में लगाना है 3 पार्ट्स में लगा दूंगा, 1 पार्ट में लगाना है 1 पार्ट में लगा दूंगा. इसके ऊपर का स्ट्रक्चर है. So this is going to be like this. आपका processes में आपके openings रहेंगे हमेशा, so that you can anyways engage. आप वो screw holes को engage कर सकते हैं, इसके कारण processes में आप openings दोगे and easily snugly ये fit होगा. And you have always a polish intaglio surface. You can appreciate the polish intaglio surface and proper occlusion. आप स्क्रू होल से आप स्क्रू निकालो, फुल प्रोसेस आपका बाहर निकल आएगा. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम अगर आपको निकालना भी पड़ता है, वेरी इजी टू रिमूव, आपका मेटल बार के साथ निकल आएगा. सो दिस ऑप्शन इज वेरी गुड फॉर कंसल्टेंट एंड रिमोट प्लेसेस पे, जहां पे उनको जाना नहीं जमता है, जहां बार बार नहीं जा सकते, या जहां पे जो भी इम्प्लांट करके जिनका प्रोसेस जो है वो उनके सबॉर्डिनेट संभाल रहे, वो पोजिशन में ये बहुत अच्छे काम का आता है. मीन्स कोई अपने क्लिनिक में बहुत ज्यादा लोग ओवर बिजी रहते हैं, दे विल हैंडल द इम्प्लांट्स एंड इम्प्लांट प्रोसेस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर देंगे. ओके. सो क्राउन एंड ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर जब भी आ जाता है, तो बाद में इट्स इजी केस एंड लोकल टेक्नीशियन भी उसको हैंडल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो दिस इज आइडेंट प्रोसेसेस. आरा लैब से अगर आपको लगेगा तो आइडेंट प्रोसेसेस, दिस इज आइडेंट बार एंड दिस इज आइडेंट प्रोसेसेस. So are you going to also speak on multi-unit apartments? Oh, sorry.
multi-unit abutment. So what is a multi-unit abutment? एक implant level आना होगा ना model जो जिसको. So first of all, आज before starting any full mouth case, so always I would always like to use multi-unit on any full mouth case. Some on partial cases also from past few months I started using multi-units. But what is a multi-unit? First, I will explain that to everyone. So multi-unit is generally this kind of abutment. Okay. So multi-unit ये abutment रहेगा. ठीक है. इसमें implant के में hex to hex engage होने वाला है. This will engage on implant from hex to hex portion. So ये hex to hex engage होगा and यहाँ से screw in होगा and इसके ऊपर बाद में आपका second screw छोटा screw इस पे सेकंड छोटा स्क्रू रहेगा. सो ये बकल ओपनिंग जो है वो आपने लिंगुअली या पैलेटली टिल कर दी. सो इट्स वन थिंग इज दैट आप सारे इम्प्लांट्स को पैरेलल कर सकते हो. मेरा चेहरा सब लोग देख पा रहे हैं? मेरा फेस देख पा रहे हैं सब लोग? नहीं, सिर्फ यही मॉडल देख पा रहे हैं. ओके, मैं ये देता हूँ एक बार. सो एक छोटा प्रिंसिपल है. और एक्सिस, फुल बॉडी एक्सिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ओके, एंटीरियर इम्प्लांट आपके ऐसे रहेंगे, हमेशा पैलेटल सरफेस में रहेंगे. अगर आपको प्रोस्थेटिक प्लेसमेंट करनी, अगर आप ज्यादा प्रोस्थेटिक प्लेसमेंट करने जाते हैं तो बकल फेनेस्ट्रेशन में जाता है. बकल फेनेस्ट्रेशन होने के बाद आपके इम्प्लांट को कोई बचा नहीं सकता. सो जनरली व्हाट ओरल सर्जन्स एंड मेनी सर्जन्स टेंड टू प्लेस द इम्प्लांट पैलेटली एंड दैट इज व्हाट दे कॉल इट एज अ टिल्ट प्रिंसिपल. सो पैलेटली टिल्ट करने के बाद so you place this implant like this, you place this implant like this. Nasal cortical bone engage करने के लिए आपको ये implant ऐसे place करने पड़ेंगे. So whenever you are placing implant like this, so what will happen? The angulation will not be parallel. आप कुछ भी करके इसके parallel angulation नहीं कर सकते हो. इस चीज पे आप कभी passive processes जिंदगी में नहीं दे पाओगे अगर आप implant लेवल पे करने वाले हो. So what you need to do, you need to make angulation parallel. So to make angulation parallel, you use multi-unit. जैसे all on four. ऑल ऑन फोर के केसेस में आप पीछे से आपके साइनस वॉल को पैरेलल जाके आप इम्प्लांट डालते हो. ओके, सो उसको पैरेलल करना है आपको सामने वाले इम्प्लांट के साथ, तो आपको मल्टी-यूनिट यूज करना जरूरी है. ओके, सो जनरली कंपनीज में बहुत बार क्या होता है 15 और 30 डिग्री दो ही मल्टी-यूनिट आपको मिलते हैं. सो अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से ऑल ऑन फोर करना चाहते हो जिसमें पैरेलल इम्प्लांट है तो 30 डिग्री के मल्टी-यूनिट कभी-कभी इनसफिशिएंट रहते हैं. दे कैन नॉट मेक द एंगल पैरेलल. सो सम सिस्टम्स प्रोवाइड यू 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री मल्टी-यूनिट. जनरली ऑल ऑन फोर अगर अच्छे से करना है तो 40 डिग्री के मल्टी-यूनिट आपको जरूरी है, which will give you parallel angle. And these changes, these parallelism can be possible only by using multi-unit. That's why whatever is your case, not all on four, regular case भी आप कर रहे हो तो आपको multi-unit देके उनको सारे angles को parallel करना है, and then only you can use screw-in processes. अगर multi-unit, most of the companies, 90-80% companies now they are started giving multi-units in the exchange of regular abutment, and most of the companies have reduced the rates of the multi-unit. So you can ask your dealer for multi-unit before starting all the cases, full mouth cases, if you wanted to plan for a screw-in processes. So now. सेकंड foremost thing I wanted to जो भी मल्टी-यूनिट प्लान करनी है, बहुत अच्छी टिप आपको दे रहा हूँ. ध्यान रखना कभी भी जब भी मल्टी-यूनिट लगाओ, अगर एंटीरियर का मल्टी-यूनिट लगाओ तो अगर आपको लगता है कि एंगल पैरेलल करने के लिए आपको 30 डिग्री के मल्टी-यूनिट जरूरी है, 30 डिग्री के मल्टी-यूनिट जरूरी है, तो आप 40 डिग्री का मल्टी-यूनिट यूज करो. क्यों? क्योंकि आई हैव सीन इन लैब दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आफ्टर यूजिंग मल्टी-यूनिट आल्सो. मल्टी-यूनिट में आप पैरेलल करने जाते हो, आप एंगल्स पैरेलल करने जाते हो, फिर भी क्या होता है आप इंसाइजल एज पे आ जाते हो. सो बहुत बार ऐसा होता है कि इवन इफ स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी, आपको कभी-कभी मन में मलाल रह जाता है कि ये अगर पैलेटली चला जाता तो बेटर रहता है. सो दैट्स व्हाई ऑलवेज अगर आपको लग रहा है 17 डिग्री का मल्टी-यूनिट लगना है तो 30 डिग्री का मल्टी-यूनिट लो. यू वांट ओपनिंग ऑन लिंगुअल, नॉट ऑन पैरेलल. आपको ओपनिंग जो है एंट्री की लिंगुअल चाहिए हमेशा, आइडियली लाइक दिस. You want opening on lingual, it will give you aesthetic results. तो एक जो
केस खत्म होने के बाद इतना सारा लैब चार्ज पे करने के बाद, मल्टी यूनिट करने के बाद एक मन में रह जाएगा यार, एस्थेटिक होता तो पेशेंट भी 4 बार बोलता है ये गड्ढा ऐसे ही रहेगा। आप पेशेंट को समझाते हो नहीं है ऐसा ही रहता है, जरूर रहता है, करना पड़ता है, लेकिन इंटरनली आप इसको चेंज कर सकते हो। आपको थोड़ा सा प्लान करोगे, ये टिप यूज करोगे तो आप प्रॉपरली यूज कर पाओगे। सो व्हाट इज इन माय हैंड इज अ 3D प्रिंटेड ट्रायल जनरली। सो ये 3D प्रिंटेड ट्रायल जो होती है, हम हर एक क्लाइंट को देते हैं जो भी प्रोस्थेटिक वर्क भेजता है। वी डोंट चार्ज फॉर दिस, ओके। This is अगेन which material? this is PMMA, 3D printed PMMA. So this is 3D printed PMMA screw detent। इसमें अगर आपको पेशेंट के मुंह में ट्रायल करना है, जनरली फुल माउथ के केसेस जो भी कर रहे हैं उनमें हमेशा 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 केस खत्म करने के बाद अगर आप पेशेंट के मुंह की तरफ देखते हो तो उसमें कैंट रहता है, थोड़ा सा कैंट रहता है। सो हमेशा एक मन में रहता है कि अगर ये कैंट सीधा हो पाता तो मेरा इफेक्ट ज्यादा अच्छा रहता। या फिर कभी कभी दांत थोड़े से ज्यादा बाहर आ जाते हैं, आपको लगता है दांत अंदर होते तो ज्यादा अच्छा रहता है, दांत छोटे रहेंगे। सो दिस इज एनाटॉमिक ट्रायल विच वी प्रोवाइड कि फाइनल आपका कैसे रहने वाला है। अगर ये ट्रायल आप पेशेंट की लेते हो तो आपका जो केस है काफी अच्छा आपको आउटपुट मिलता है, काफी बेटर आपको आउटपुट मिलता है। आपको बहुत पहले पता चलता है कि क्या चेंजेस करने हैं। यू कैन डू ऑल द चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्माइल। स्माइल में कम दिख रहा है, स्माइल में कैंट दिख रहा है, रेगुलर में कैंट दिख रहा है, बात करने में कैंट दिख रहा है, दांत सामने जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, मल्टी यूनिट चेंज करना है, मल्टी यूनिट एंगल सामने आ रहा है। सो दिस ऑल द चेंजेस यू कैन डू। परफेक्शन लेवल पे अगर आपको काम करना है तो दिस ट्रायल इज वेरी नेसेसरी। सो अगेन थोड़ा सा मैं टॉपिक से इधर उधर जा रहा हूँ, बट मुझे जो हाँ Dr. हाँ Swapnil, हाँ if sometimes इतना सब करने के बाद भी, as you said, कभी कभी access hole फिर भी बक्कली आ जाता है. And since we have invested already in the apartments, we have opened it, so we have to go ahead with it. So I want to ask you, is there any hack to yes fill that space? Like, can we put an inlay or something? Because I have laminate noticed. laminate और single unit Malo-Polo, single unit Malo-Polo means Okay, all screw detent, single unit will be Malo-Polo. got it. Because otherwise that composite is discolored, उसके margins से yellowish दिखने लगते हैं, they look very ugly. I'll share 1-2 photo of that also, okay, if time permits. Sure. Okay, so you can use single unit Malo-Polo on cases कि एक यूनिट पे आप Malo-Polo यूज करो। हाँ, एक आरा डेंटल की लैब के वेबसाइट के लिंक यहाँ पे शेयर कर देना। उसके इसमें जाके केस नंबर कौन सी एक बार बता देना। उसमें एक केस गैलरी है, केस गैलरी में ऑल द केसेस आर शेयर्ड। सो उसका केस नंबर मैं दे देता हूँ। कोई भी या लिंक मैं यहाँ पे श्रीनाथ, You can share the link in the chat box. yes, in the chat box I'll share the link. Yeah. In that link you can see the thing, okay? Sure. हाँ, सो मल्टी यूनिट। सो फर्स्ट फुल माउथ केस अगर आपको प्लान करनी है, स्क्रू डिटेंट के लिए प्लान करनी है तो आपको मल्टी यूनिट लगाने हैं। अगर आपको मल्टी यूनिट नहीं लगाने हैं तो ऑलवेज प्लान सीमेंट डिटेंट। रेगुलर अबटमेंट में करनी है तो सीमेंट डिटेंट करो। इम्प्लांट लेवल पे स्क्रू डिटेंट आई वोंट सजेस्ट यू कि उसके ऊपर आप करो, ओके। सो मल्टी यूनिट लगाने के बाद यू विल टेक इंप्रेशन विद ओपन ट्रे। Can you explain what is implant level and apartment level in short for benefit of everybody? दिस इज इम्प्लांट लेवल। जब पेशेंट के मुंह में इम्प्लांट होते हैं आप मल्टी यूनिट नहीं लगाते हो तो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांट लेवल। और पेशेंट के मुंह में जब मल्टी यूनिट होते हो और आप मल्टी यूनिट पे इंप्रेशन लेते हो तो इट इज कॉल्ड एज मल्टी यूनिट लेवल। अगेन यहाँ पे एक छोटी सी और एक चीज होती है, बहुत लोग क्या करते हैं इम्प्लांट लेवल इंप्रेशन देते हैं, इम्प्लांट लेवल इंप्रेशन देते हैं और लैब वाले को बोलते हैं इसके ऊपर मल्टी यूनिट लगाओ और उसके ऊपर आप प्रोसेसेस बनाओ। मैं पेशेंट के मुंह में मल्टी यूनिट लगाऊंगा और प्रोसेसेस फिट करूंगा, बिकॉज उसके 2-3 रीजन होते हैं। उनके पास मल्टी यूनिट के इंप्रेशन एनालॉग और इम्प्लांट एनालॉग नहीं होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट मेजर रीजन मैंने लैब में देखा है कि समटाइम्स दे डोंट वांट टू परचेस इंप्रेशन एनालॉग फॉर मल्टी यूनिट एंड इम्प्लांट एनालॉग फॉर मल्टी यूनिट बिकॉज दे ऑलरेडी हैव इम्प्लांट लेवल। बट द थिंग इज दैट देयर आर 6 इम्प्लांट और आपका मल्टी यूनिट जो है, आपका मल्टी यूनिट जो है वो 6 पोजीशन में बैठ सकता है। दिस कैन सिट, ये दिस इज अ मल्टी यूनिट, दिस कैन सिट हेक्स टू हेक्स 6 पोजीशन में बैठ सकता है। तो 6 into 6 36 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अगर आप ये अगर मल्टी यूनिट बिठा के कास्ट में बिठा के आप प्रोसेसेस बनाते हो और फिर बाद में अगर आप सोचते हो कि सेम मल्टी यूनिट एंगल मल्टी यूनिट पेशेंट पे उठा के सेम प्रोसेसेस पैसिवली फिट कर दोगे तो आपको पेशेंट टाइम विल बी 2.5 hours, नॉट लेस देन दैट। और एक भी अगर आपका थोड़ा सा कैलिबर कम है और आप एक मल्टी यूनिट को भी सिट नहीं कर पाएंगे तो आपका कास्टेबल अबटमेंट या डीएमएलएस प्रोसेस का जितना भी खर्चा है उतना वेस्ट जाएगा, पेशेंट चेयर साइड टाइम ज्यादा रहेगा। दूसरा चीज पेशेंट को लगता है, पेशेंट को पता चल जाता है ऑपरेटर इज नॉट कॉन्फिडेंट, कुछ तो भी गड़बड़
की है मेरी, सर मेरे इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? ही विल आस्क यू 4 times. ओके, सो दैट्स जब भी मल्टी यूनिट के ऊपर लेना है, यू हैव टू यूज मल्टी यूनिट इंप्रेशन एनालॉग, यू यूज मल्टी यूनिट इंप्रेशन एनालॉग एंड मल्टी यूनिट एनालॉग. So you take the impression with it. Digital impression लो, अगर थर्ड बहुत अच्छी टेक्निक है फायर एंड फॉरगेट की, अगर कोई फॉलो करता है तो आप अल्जिनेट से भी इंप्रेशन ले सकते हो. वी हैड अल्जिनेट इंप्रेशनेबल स्कैन बॉडीज, so it's a Can you very explain in detail about this fire and forget concept? So these are the scan bodies which are developed by our RR lab. So the thing is that you don't need to invest in this. You don't need to invest in this. We will provide you these scan bodies. Okay, so आपको impression analog लेने की जरूरत नहीं. If you send the case to RR Dental Lab, they will be providing you implant analog. Okay, so you don't need to purchase implant analog also. So आपको prosthetic plan करना है. The general simple funda यही है कि मैं I have seen the clinical side and I have seen the patient side. So these and Ramanna is into special into implant dentistry from 2010. 2010 से वो implant में ही पूरा घुसा पड़ा है. सो एक टाइम पे ऐसा है कि मेन रीजन क्या है मल्टीनेट नहीं यूज करने का, या स्क्रूटन प्रोसेसेस को नहीं जाने का, या फिर गलती होने का. तो मेजर गलतियां जितनी भी थी, तो उतनी सेटल करने के लिए हमने क्या किया कि वॉट एवर यू डू, क्या जनरली क्या होता है कि इंप्रेशन एनालॉग इम्प्लांट एनालॉग की कमी रहती है. सो विल प्रोवाइड इंप्रेशन एनालॉग इम्प्लांट एनालॉग. ठीक है, 3D प्रिंटेड मॉडल बहुत कॉस्टली है, विल प्रोवाइड दैट. स्कैन बॉडीज महंगे, विल प्रोवाइड दैट. So whatever required to make your case beautiful, will provide that. थर्ड टेंशन क्या रहता है कि हाँ पीएमए में ट्रायल लेना है, पीएमए में ट्रायल का कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगा स्कैन के साथ. सो विल प्रोवाइड, वी वोंट चार्ज यू, विल प्रोवाइड दैट. आवर एम इज दैट कि आप आपके केस को कितना बेटर कर सकते हो, विथ आवर हेल्प विल डू दैट. सो सिरामिक, जितना एडवांस सिरामिक यूज कर सकते हैं हम लोग यूज करेंगे. जितना आप अगर मैंने आपको केस की वो फाइल दी है. Yes, yes, it is there in the chat box for everybody. The link is there. Okay, so we use a most aesthetic high-end ceramics, so beautiful ceramics to make the process free. Third thing is that in this protocol you don't need to take a jig trial. Generally regular manual impression हम जब भी लेंगे या regular digital impression जब भी लेंगे तभी भी they will tell you to take a jig trial. Okay, we don't tell you to take jig trial. We are confident that jig trial you don't need to check. Fitting 100% आएगी, वो गारंटी हमारी तरफ से रहेगी. So आप आपकी तरफ से ऑलरेडी एक स्टेप पेशेंट की कम कर रहे हो. इट्स सिंपली 4 steps and your case is done. First you put our impressionable scan bodies. If you have intraoral scanner, you scan it. If you don't have intraoral scanner, you can take a alginate impression also for it. You can take a putty impression also. You can send it to us. Second thing, you need to send a jaw relation with that. Okay, so ये first step हो गई. Second step, we will be sending you 3D printed trials. We will be sending you 3D printed trials like this. You check out आपने ये jaw relation जो लिया उसका occlusion कैसा है, पेशेंट का कैंट कैसा है, एस्थेटिक कैसा है, ओपनिंग्स कैसे आ रही है, बाहर कितना आ रहा है, पेशेंट को दिखा दो, बता दो दांत इतने बड़े रहेंगे, दांत दांत किस लिए रहेगी, स्माइल में इतना दिखेगा. कोई आपको करेक्शन करना है तो यू मार्क द करेक्शन. You mark the correction like this कि इतनी हाइट कम करनी है, इतना ये कम करना है, एंड यू सेंड इट टू द लैब. जॉर्लेशन चेक करना है तो जॉर्लेशन आप जॉर्लेशन उसको चेंज करो पेशेंट का, न्यू जॉर्लेशन लेके न्यू बाइट लेके आप भेजो. बहुत बार ऐसे होता है कि फुल माउथ इम्प्लांट के केसेस में स्पेशली पेशेंट के पोस्टीरियर टीथ जो है वो पहले गए रहते, तो पेशेंट हैज अ हैबिट ऑफ चेइंग फ्रॉम एंटीरियर टीथ. तो जब भी पेशेंट बाइट करेगा, पेशेंट एंटीरियर लेके बाइट करेगा. ये सबने प्रॉब्लम बहुत देखी होगी, क्योंकि डे टू डे मैं ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ हर एक के साथ. लैब में जितनी भी केसेस होती बहुत लोगों के साथ होती है. बट पेशेंट के जब पीछे के दांत, वैक्स बाइट में पेशेंट वो नहीं करेगा, बट पेशेंट के जब पीछे के दांत आएंगे एंड आप थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए पेशेंट को बिठा दोगे बाइट के साथ, तो धीरे से पेशेंट पीछे लेके बंद करेगा. देन यू नो कि पेशेंट ने बाइट गलत दिया है. एंड उस टाइम पे अगर बाइट चेक करना है तो दिस 3D प्रिंटेड ट्रायल वर्क्स लाइक वंडर. मतलब इसने वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हद तक सेटल कर दी है, कैंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हद तक सेटल कर दी है. हाँ, एंड अगर आपको लगता है कि इसकी हाइट कम है तो आप सिंपली कंपोजिट लगाओ इसके ऊपर और ऐड करके दे दो कि हमको इतनी हाइट चाहिए. सिंपल. कि अगर आपको लगता है इसकी हाइट कम होगी तो आप कंपोजिट ऐड कर दो, पेशेंट को एक बार दिखा दो एंड लैब को भेज दो. तो कम करना है, इट इज वेरी इजी टू ट्रिम. अगर आपको पेशेंट को वहीं के वहीं दिखा के कम करना है तो आप इसको ट्रिम करो, बस लैब वालों को इन्फॉर्म करो कि मैंने ट्रिम किया है इतना. अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, आपने ट्रिम किया है, खुद कर लोगे, तो फाइनल प्रोसेसेस विल बी लाइक दिस. सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट इन द लैब, एंड रिटन कम्युनिकेशन, नॉट ओरल कम्युनिकेशन. बहुत सारे लोग
बात करते हैं, बताते हैं। लैब में दे हैड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम n number of dentists and they tend to forget. Dr. Swapnil, your And voice is always breaking. first, whatever instruction you want to provide for okay. So, Your video has frozen. Okay, now no, it's okay. now okay. Now it's okay. So whenever the communication has to be with lab, it should be written communication and it should be send it to the 2 or 3 person in the lab. So that is what my advice to everyone. Okay, कि लैब में एक बंदे को नहीं, 2 से 3 बंदे आपके नॉलेज में जितने हैं, हर एक को इंस्ट्रक्शन, रिटन इंस्ट्रक्शन व्हाट्सएप मैसेज करना है, वेरी इजी. सो नाउ विल गो बैक टू ऑप्शंस. फायर एंड फॉरगेट के बारे में एक अलग हम लोग सेशन रखेंगे, बहुत अच्छा. सो नाउ द थर्ड And it ऑप्शन, is, we have 1 minute, Dr. Swapnil. okay. And there was a question, is there enough support in Mumbai regarding this fire and forget? Yes, from now we are started. They can contact to RR Dental Lab. They have representative over there. They have scanning services in Mumbai, and they are starting from this only 3 दिन हो गया start किए. So most golden option, सबसे गोल्डन कभी जिंदगी में वेस्ट नहीं जाएगा, जिसको बोलते खरा सोना, वो ऑप्शन है DMLS स्क्रू रिटेंट. ओके, सो जो है इसमें जिंदगी में आप एक बार DMLS स्क्रू रिटेंट लगा लो, पेशेंट जिंदगी में कभी आपको चेहरा दिखाने नहीं आएगा. एंड स्क्रू रिटेंट इज अ वेरी इजी थिंग. आगे चल के इसका डिजिटल मॉडल आपको मिलेगा. अगर आप फायर एंड फॉरगेट टेक्निक से करते हो तो डिजिटल मॉडल मिलेगा. डिजिटल मॉडल में आपको एनालॉग संभाल के रखने की जरूरत नहीं है. रेगुलर मॉडल और डिजिटल मॉडल में आपको डिसएडवांटेज ऐसे रहते हैं. डिजिटल मॉडल आप पेशेंट को देख के रखो, जिस दिन पेशेंट आएंगे एनालॉग लगाओ. अगर रेगुलर मॉडल पेशेंट को देना है तो आपको जेब से डिजिटल मॉडल का खर्चा करके पेशेंट को देना पड़ेगा. इन केस फ्यूचर में स्क्रू रिटेंट PFM में आपका सिरेमिक चिप ऑफ हो जाता है, पेशेंट से मॉडल लो, प्रोसेसेस लो, आप बिठाओ, वापस से लेयरिंग करके 99% में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर ऑक्लूजन की प्रॉब्लम है, बाइट की कुछ प्रॉब्लम है, देन ओनली इट विल कम, अदरवाइज नो. थर्ड अच्छी चीज जो होती है, आप इसमें रीलेयरिंग कर सकते हो. 4 से 5 साल के बाद इम्प्लांट में चेंज नहीं आएगा, प्रोसेस में चेंज नहीं आएगा, लेकिन टिश्यू विल रिसीड. सो टिश्यू रिसीड होगी. 4 इयर्स बाद पेशेंट को वापस से बुलाओ, सिरेमिक लेयरिंग निकालो, फ्रेमवर्क में रखो, उसका फिटिंग बहुत अच्छा है, सिरेमिक लेयरिंग वापस से करो एंड बिठा दो. So you can see this processes, वो इंटाग्लियो सरफेस, बाकी all the polished surface is going to be there. स्क्रू रिटेंट PFM जो होता है वो. एंड यहाँ पे वीडियो प्रॉपर है कि नहीं है, आप केस It is proper. हाँ नहीं, बट इसमें जो इनेमल इफेक्ट्स है वो दिखाने दिख के रहे लिए हैं. दिस कैम, इफ यू गो ऑन वेबसाइट यू कैन अप्रिशिएट वेरी वेल. Sure. जो इफेक्ट्स है इसमें डाले हुए, जो मैं मेरे नेचुरल आई से देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैमरा में देख पा रहा हूँ. अगर आप वेबसाइट पे केसेस देखोगे गैलरीज में, सो यू कैन अप्रिशिएट द इनेमल एंड ऑल इफेक्ट. सो वो इफेक्ट्स वेरी हाई एंड सिरेमिक, सो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट. So this is screw retent PFM option, polish from everywhere, glaze from everywhere, and flat convex intaglio surface, not concave. Dr. Swapnil, regarding the fire and forget, you said there are 4 steps. So we reached till the PMMA trial, which is PMMA step trial. 3 and step 4. Which is step 2. PMMA trial is step 2. Yes. Okay. After Step that, 3 is coping trial. coping. So Coping once we approve of the teeth position and everything, then according to that, the metal trial will be made by the lab and sent it to us. And then we will try it in the mouth. You'll try it in the patient wound and take a jaw relation. Now there is a Again? specific jaw relation. After coping trial, you have to take a jaw relation. But we take jaw relation in the first step. But no, coping trial के बाद वापस एक बार लेना जरूरी है. 100%. How to take? Just a centric, not the vertical, you mean? वर्टिकल नहीं लेना है, सेंट्रिक लेना है. Yes. ठीक है. हाँ. Thing is that बाइट रजिस्ट्रेशन के लिए you have 3 materials. First material is wax. फेक दो उसको आके. फुल माउथ इम्प्लांट के केस में वैक्स में कोई इंप्रेशन नहीं लेना. फेक दो. Okay, that आपका वॉइस ब्रेक हुआ. He said फेक दो वैक्स को. फेक दो वैक्स को. वैक्स में इंप्रेशन फुल माउथ का केस है तो लेना ही नहीं है. सेकंड, आलू वैक्स also discarded. थर्ड is आपका ब्लू बाइट और ऑरेंज बाइट जो होता है, not particular.
पट्टी में कभी नहीं लेना है, ठीक है। सो पट्टी इज नॉट मटेरियल, क्योंकि पट्टी में फिटिंग जो होती है वो प्रॉपर नहीं आती, कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी रह जाती है पट्टी में। जितने भी क्लाइंट ने पट्टी में लेके दिया है, सो देयर इज अ स्पेसिफिक मटेरियल फॉर दैट विच इज कॉल्ड एज ऑरेंज बाइट और ब्लू बाइट। ऑलवेज उसमें दो, बहुत परफेक्ट आता है, बहुत परफेक्ट। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें अगर आप बाइट दोगे तो। आपको कभी बाइट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैक्स में क्या होता है, वैक्स में जनरली वैक्स में अगर बाइट दोगे तो पेशेंट की डिक्की में भी डालेगा तो की डिक्की का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस उसने Your voice बैग is में ही रखना cracking. और सामान के साथ उसमें इतने चेंजेस हो जाने हैं कि आपको कभी भी एक साइड से बाइट मिले। वॉइस इज क्रैकिंग। आई एम एट फुल स्पीड वाईफाई Now 5G। you're okay. Now you're okay. ओके। सो देर इज, जब भी वैक्स में लेते हैं तो कभी भी ऐसे रहता है कि पेशेंट के मुंह में एक साइड कहीं से गैप दिखती है एंड ऑलवेज वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज, दूसरे साइड से ज्यादा कम करके हमको करना पड़ता है। हम लोग ज्यादा फायरिंग देके भी कर सकते हैं, बट इन दैट अटेम्प्ट ऑक्लूजन करेक्शन करने के लिए ज्यादा फायरिंग भी देंगे तो सिरेमिक वीक होगा। वी कैन गिव 5 फायरिंग्स और 6 फायरिंग्स ऑन द सिरेमिक, आइडियली 4 फायरिंग्स। 5-6 के बाद इंडिया में तो 7-8 भी हो जाती है, बहुत बार डॉक्टर इतनी बार करेक्शन करते हैं। बट लोग ओवर परफेक्शन के लिए करेक्शन करवाते हैं, बट इन दैट अटेम्प्ट यू आर मेकिंग योर सिरेमिक वीक, सो दैट थिंग दे हैव टू अंडरस्टैंड। सो यू हैव टू लिमिट योर थिंग्स। अगेन एक बहुत रॉन्ग ट्रेंड मैंने देखी है, थोड़ा सा भी अगर ऑक्लूजन घिसेंगे दे विल सेंड इट फॉर ग्लेज। अगेन दैट ग्लेज विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग योर सिरेमिक स्ट्रेंथ। ओके, सो ऑलवेज कीप अ व्हाइट डिस्क, पॉलिशिंग डिस्क, सिरेमिक पॉलिशिंग डिस्क आती है। अगर आप कहीं पे मैनुअल आप ट्रिम करते हो तो इट इज ऑलवेज बेटर टू पॉलिश। सिरेमिक पॉलिशिंग एक प्रॉपर आर्टिकल्स देखोगे तो प्रॉपर उसका वो है, मतलब प्रॉपर ग्लेजिंग, पॉलिश ग्लेज एक प्रॉपर टर्म्स है, मतलब एक प्रॉपर फिनोमेनॉन है दैट यू कैन यूज। आप व्हाइट डिस्क से पॉलिश करके पेशेंट के, व्हाइट डिस्क से पॉलिश एंड ग्लेज करके, मैनुअल पॉलिश करके पेशेंट के मुंह में दे सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप उसको वापस से ग्लेजिंग के लिए फायरिंग में 900 डिग्री सेल्सियस तक ताकते हैं तो हो सकता है आपका सिरेमिक आप वीक कर रहे हो। ओके, सो दैट थिंग आपको आपकी लिमिट करनी है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक अ प्रॉपर बाइट एंड दैट व्हाई बेस्ट मटेरियल आप खुद एक्सपीरियंस करो। आप एक बार ब्लू बाइट यूज करोगे एंड यू You विल mean फाइंड jet द bite डिफरेंस इन योर or the स्किन। bite जेड registration बाइट, ऑरेंज material, बाइट, हाँ, which is an elastomeric impression material. इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन। समटाइम्स पीपल टेंड टू टेक इट इन पट्टी, की पट्टी में लेके देता हूं, पर नहीं, पट्टी नहीं अच्छे से काम करता है, ठीक है। And Dr. Swapnil, so the fourth step is BISC, right? For fire and forget. नो, फोर्थ स्टेप इज फाइनल। फोर्थ Final. स्टेप इज फाइनल एंड फाइनल में आपको पॉलिशिंग डिस्क से पॉलिश करवा दो आप, ठीक है। So the Provided- advantage, so what I understand is the advantage of fire and forget is that we are eliminating the cumbersome procedure of taking impressions. Like उसको हमको वो splint करना है, वो सब करना है. It is all eliminated. यस, इंट्राओरल स्कैनर आपको लेने की जरूरत नहीं। इंट्राओरल स्कैनर है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको इंट्राओरल स्कैनर परचेस करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, चेयर साइड टाइम, अगर आपको सिर्फ स्कैन बॉडी लगाना है और अल्टरनेट इंप्रेशन लेना है, इट्स ओनली 5 to 10 minutes जॉब। इफ वी हैव टाइम I'll show you one difficult case which is not possible by manual or digital method, which is completed only 5 minutes Trial is not needed. And one more question I have is that since we are going to scan it with their scan bodies, how accurate is the full mouth impression with these scan bodies, digital impression? we challenge to take it in alternate impression also, so that scanner में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप So it is alternate accurate. में भी लेके कर सकते हो। हाँ, स्कैनर लेंगे तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस रहता है। देयर इज ऑलवेज एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रोफाइल्स बहुत अच्छी आती है, स्कैन डाटा बहुत प्रॉपर आता है, जॉर्लेशन बहुत, अगर जॉर्लेशन एबल कर पाते, सिंगल आंच रहेगा तो जॉर्लेशन बहुत परफेक्ट आता है, ठीक है। दोस थिंग्स यू कैन, एंड आप फेस का मिडलाइन स्कैन कर सकते हो पेशेंट का। सो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, स्कैनर के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। हाँ, सो And we can do this in full mouth implant cases, right? Fire फुल and माउथ forget. इम्प्लांट केसेस The आपको minimum सिर्फ number of implants, how much we require? whatever, all on 4 you can do, all on 2 also you can do। मतलब आपका पार्शियल है, मल्टीनेट लगा रहे हो तो भी आप फायर एंड फॉरगेट कर सकते हो। जहां पे भी मल्टीनेट लगा रहे हो आप फायर एंड फॉरगेट कर सकते हो। मल्टीनेट सेकंड इज अ न्यू इनोवेटिव ऑप्शन। वी माइट बी हैविंग लेस टाइम, सो आज जितना है उतना कवर करता हूं मैं, ठीक है। सो इसमें जो है 6 इम्प्लांट, wherever you are using मल्टीनेट यू कैन यूज दिस। सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी पार्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इंप्रेशन दिस आल्सो लैब प्रोवाइड।
आपको एनालॉग ऑल्सो लैब प्रोवाइड्स, आपको कंपनी का पेरेंट कंपनी का इंटरनल स्क्रू लेना है, जो मल्टी यूनिट लगा आपको जो स्कैन बॉडी लगाने के लिए लगना है, वो स्क्रू आपको सिर्फ परचेस करना है। बाकी आपको कोई पार्ट्स नहीं लगने, कुछ नहीं लगने। आपको डिजिटल मॉडल आएगा, वो आप पेशेंट को दे सकते हो, पेशेंट के साथ रख सकते हो। डिजिटल मॉडल में से एनालॉग निकल जाएगा, आप पेशेंट को कितना भी एनालॉग, नेक्स्ट टाइम पेशेंट आएगा आपको प्रॉब्लम है, आप एनालॉग लगाओ, यू हैव रेडी कास्ट, रेडी प्रोसेसेस, जो भी चेंजेस करने आप कर सकते हो। तो बहुत सारा प्रोटोकॉल्स जो इम्प्लांट का है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो इसमें सेटल हो जाती है। जितनी भी टेक्निकल एक छोटी छोटी भी प्रॉब्लम्स है उसको सेटल करने की तरफ हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है प्रोटोकॉल्स में। ठीक है, सो इकोनॉमी आपकी बहुत बेस्ट है। चार्जेस, इफ यू आस्क अबाउट चार्जेस, बहुत लोगों को मेन चीज रहती है चार्जेस की। सो चार्जेस इज अराउंड 2500 पर यूनिट एंड 2300 डिस्काउंट के साथ। लैब दे डू जनरली 2300, यू हैव टू आस्क फॉर द डिस्काउंट, वो चीज चलती है थोड़ा बहुत, बस 23 के नीचे नहीं करते जनरली वो। एंड ओके, सो नाउ थर्ड स्क्रू रिटेन पीएफएम के बाद, सो स्क्रू रिटेन पीएफएम आप 25 mm तक आप इसको कर सकते हो। 25 mm के बाद अगर 25, नाउ विल कम टू लिटिल बिट ऑन प्रोस्थेटिक 25 mm what? Sorry. I'll complete the process. 25 mm interocclusal distance, अपर एंड लोअर आर्च के बीच में जब भी 25 mm तक होगा तब तक आप डीएमएलएस स्क्रू रिटेन दे सकते हो। 25 mm से ज्यादा जाता है 25 30 mm तक भी आप दे सकते हो। डिजाइन मॉडिफिकेशन करके, डिजाइन पतला करके अगर आप लेयरिंग कर रहे हो लाइक दिस, एक वो एक केस होगा म्यूकोरमाइकोसिस का, उधर पतला डिजाइन है उसका। सो डिजाइन जनरली यू कैन सी द थिन डिजाइन, ऐसे थिन डिजाइन करके अगर आप कर रहे हो तो आप एक 20-30 mm तक भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है, 30 mm के ऊपर जाता है तो यू नीड टू गो इनटू टाइटेनियम, मालोपोलो टाइटेनियम। ओके, सो टाइटेनियम, अब विल गो टू लिटिल बिट टाइटेनियम। सो दिस इज अ मोलोपोलो टाइटेनियम। सो टाइटेनियम जब भी करते हो सबसे बड़ा सबका सवाल होता है वेट में कितना एडवांटेजेस है। सो वी हैव 3 काइंड ऑफ मोलोपोलो। One monopolo is same design. These are 3 same design but 3 different things. So this is cobalt chrome monopolo. Okay, this is mild titanium monopolo. Okay, and this is a DMLS monopolo. So we have in RR lab our own DMLS, titanium DMLS machine. It's India's first titanium DMLS machine. So we have this. So this is a 3D printed. Generally वजन में फर्क देखते हैं. So सबसे पहले वजन में फर्क. So whenever आपका इंट्रा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा जाता है इजोब्रिज केसेस में, बैटरी लो, एक मिनट, नहीं, 1 सेकंड ना, जस्ट 1 सेकंड, बहुत देर तो कौन रखा है इसको। इट्स ओके, आप ऐसे ही बता सकते हो ओरली। नहीं, इस पे ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ओरली तो नहीं बता सकता, दिखाने में ही ज्यादा था। ठीक है, दिल ट्राई। But you can just tell us, no, weight में what is the difference till then? वेट में इसका वेट जो था वो जनरली 48। ये कौन सा मटेरियल था? ये कोबाल्ट क्रोम डीएमएलएस। सो जनरली इंडिया में क्या है, डीएमएलएस मशीन बहुत ज्यादा है, तो जब भी लंबा हो जाता है, जिरकोनिया क्राउन करने होते हैं, तो दे विल पुश यू फॉर डीएमएलएस कोबाल्ट क्रोम, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। जनरली अगर आपको मालोपोलो करना है तो इट शुड बी इन टाइटेनियम। कोबाल्ट क्रोम में मालोपोलो करने से कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा Why? स्क्रू रिटेन। Why it should be in titanium and not in फर्स्ट, cobalt-chromium? ओके, सो व्हाई इट शुड बी इन टाइटेनियम। टाइटेनियम में करने का उसका स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि टाइटेनियम आपको वेट रिड्यूस करता है। ओके, कोबाल्ट क्रोम में करने के बाद आप वेट रिडक्शन नहीं कर सकते। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मोलोपोलो करने के बाद आपको जिरकोनिया क्राउन देना पड़ता है, उसका वजन अगेन बढ़ जाता है। ओके, सो एंड थर्ड थिंग इज दैट मोलोपोलो में आपके 3 जंक्शन बनेंगे वापस से, इम्प्लांट टू प्रोसेसिस जंक्शन और आपका फ्रेमवर्क टू आपका जंक्शन। ओके, सो जंक्शन, जितने ज्यादा जंक्शन होंगे उतनी प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा रहेगी। बट ऊपर का जो क्राउन है वो पीएफएम में भी बन सकता है, राइट?
पीएफएम में फिर डायरेक्ट स्क्रू रिटेन डीएमएलएस करो ना, पीएफएम में बनाने का मतलब क्या है? व्हाई टू मेक सेपरेट क्राउन? लेयरिंग करो ना डायरेक्टली, कोबाल्ट क्रोम पे डायरेक्टली लेयरिंग करके बना लो, स्क्रू रिटेन होगा, वन जंक्शन, इजी इंसर्ट इजी आउट। अगर एक्सेस होल सारे बक्कल आ रहे हैं हाँ, तो एक हाथ तभी सिंगल का टिपिकली एंटीरियर पॉलो का मॉलो प्रॉब्लम करते हैं। होगा, सिर्फ एंटीरियर का एसएसओल का प्रॉब्लम होगा, उसमें एक सिंगल आप वो कर सकते हो मालो पोलो। सो दिस इज 49, जनरली 49 ग्राम। ओके, same file, these are the same files. Now we'll go to milled malo polo. So milled malo polo generally 30 gram का है ये, so 20 gram you are saving. And 3D printed malo polo, same file, 3D printed malo polo is 25 gram. Okay, half the your cobalt. Okay, so now screw it and PFM वजन कितना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। So this is titanium ना, PFM screw it. So screw it and PFM इसका 24 ग्राम है, और मोलो पोलो में उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी तो भी उसका वेट कितना रहेगा, ये फ्रेमवर्क का वेट है। हाँ, ये छोटी साइज में, हाइट अगर छोटी रहेगी तो आपका उतना हो जाएगा। So milled titanium palo malo is what you recommend, right? सो हाफ द वेट ऑफ दिस। सो मोलो पोलो जब भी करेंगे, मोलो पोलो के ऊपर आइडियली जो मोलो पोलो ने दिया था उसके ऊपर जिरकोनिया काउंट्स थे, ठीक है। सो जो मोलो पोलो के पहले के टाइम पे सिरेमिक बॉन्ड नहीं होता था, नाउ सिरेमिक बॉन्ड होता है, तो मोलो पोलो का गम सरफेस जो होता है वो पिंक कंपोजिट था एंड उसके ऊपर जिरकोनिया क्राउन थे। ओके, so that is what basically Molo Bolo concept was. So this is We are over time actually. How much more time will we need? We have 15 minutes now for question and answers. we'll do question and answer, ma'am. I'm more interested in that. So this But session, is there anything more important that you want to convey now? yes. So one thing I wanted to tell you, it was one thing which we are introduced, what we call it as a monodenture. Okay, so तो मोनोडेंचर, सो मोनोडेंचर इज, ये जनरली ये म्यूकोरमाइकोसिस का पेशेंट है, हाइट इतनी ज्यादा है, इसका वजन देखते हैं कितना है, वजन दिखाना। सो जनरली हाइब्रिड डेंचर में हर एक ने प्रॉब्लम हो जाए, सो वी ट्राई टू, एक प्रॉब्लम जो आती है जनरली उसके ऊपर सोल्यूशन क्या होता है, क्या कर सकते हैं, दैट वी ऑलवेज दिस इज माइनस। So this is 28. This is this much big. Height इसकी देखना कितनी बड़ी है. Okay. Still it's at 28 grams. Okay. So generally traditional hybrid denture में क्या होता है, आपके दांत का जंक्शन अलग होता है, वो एक्रिलिक के ऊपर होता है, और एक्रिलिक का मेटल के साथ जंक्शन अलग होता है. So what we have done that एक specific patented design की framework we have designed. जो आधी mesh थी जिसमें, mesh. So this is a basically, if you can see the mesh framework, okay, जिसमें कंपोजिट, दिस इज इंजेक्शन मोल्डेड कंपोजिट, दिस इज इंजेक्शन मोल्डेड कंपोजिट, तो ये जो सारा है वो सिंगल बॉडी है, मोनोडेंचर. सो दिस इज अ सिंगल बॉडी, देयर आर नो सेपरेट टूथ्स, सो दैट दांत अलग होने का कोई चांस नहीं रहेगा. सेकंड चीज, अंडर प्रेशर इट इज इंजेक्शन मोल्डेड इन अ मेश लाइक दिस, सो दैट मेटल से भी डिसलॉज होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है. एंड थर्ड, पिंक कंपोजिट is given so that easy repair, मतलब ये पिंक कंपोजिट हो गया, आपको टिश्यू में पेशेंट का रिसेशन हो जाता है, ऊपर ऐड करना है, इमीडिएट लोडिंग में आपको देना है. सो इमीडिएट लोडिंग में आपका कंसेप्ट है सॉफ्ट लोड एंड हार्ड लोड का. हमेशा इमीडिएट लोडिंग जब करते तो आप हार्ड लोड नहीं कर सकते हो. लाइक एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ इमीडिएट सॉफ्ट लोड एंड हार्ड लोड इज दैट कि नीचे ये अगर आपकी बोन है, अगर आप मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे और ऊपर से आप मारोगे तो डेंट आपका डायरेक्टली नीचे जाएगा, और आप इसके ऊपर प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, ये प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट रखोगे और उसके ऊपर मारोगे तो डेंट ऊपर नहीं जाएगा, प्लास्टिक एब्जॉर्ब करेगा. तो एक्रिलिक या जो आपका कंपोजिट है वो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है, तो वो सारे लोड जो है वो इम्प्लांट पे नहीं आना देता है, वो सारे लोड एब्जॉर्ब करता है. तो आपको अगर इमीडिएट लोडिंग में अगर आपको स्क्रू रिटेन देना है, डेंचर देना है, तो यू कैन वेरी वेल गिव इट. आपके जितने भी बाद में टिश्यू रिसेशन होगा, आप कंपोजिट से इजीली चेयर साइड एडजस्ट कर सकते हो. इन फ्यूचर कभी आपका
दांत इन केस कुछ हो गया, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो भी चेयर साइड रिपेयर बहुत इजी होता है कंपोजिट से, क्योंकि फुल डेंचर आपका इंजेक्शन मोल्डेड कंपोजिट से अंडर प्रेशर, इट इज नॉट रेगुलर कंपोजिट से, इंजेक्शन मोल्डेड अंडर प्रेशर इसमें इंजेक्ट किया होता है, सो ऑलरेडी इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है रेगुलर कंपोजिट से. So this retains on the bar with mechanical retention with the help of those holes that is created. Yes, like this mesh. Okay. Mesh चारों साइड से. And which is strength wise better, composite or acrylic? Strength wise, composite. Both actually both are the composite only. If we say, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा ज्यादा. But composite, as you're saying, is like one mono unit. In acrylic, the teeth and acrylic again denture base है bonding. तो वो एक इसमें फ्रैक्चर की कम हो प्रॉब्लम जाता नहीं है। आएगी आपको, इसमें फ्रैक्चर की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी. डेंचर में आपका प्रेशर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, आपका पूरा दांत टक करके निकल जाएगा. यहाँ से दांत सामने से थोड़ा सा फ्रैक्चर होगा, जहां पे भी होगा आप कंपोजिट ऐड कर सकते हो, ऑक्लूजल एडजस्टमेंट में करो, यू कैन गो फॉरवर्ड. आपको अगर आपका दांत निकल जाता है तो आप कोल्ड क्योर से लगाते हो, कोल्ड क्योर से पूरा दांत लगाना पड़ता है, विच इज नॉट वेरी एस्थेटिक. और Can this monodenture be used against natural tooth? Yes, very well you can use. Composite अगर आप natural tooth के opposite में use कर सकते हो तो आप use कर ही सकते हो ना. Wear and tear थोड़ा ज्यादा होगा, but again wherever it is hybrid denture आपको हर 3 साल में तो आपको replace करना है 3 से 4 साल में according to books. So let's start with the This questions. is a replacement for hybrid denture. Yes, we'll start question and answer. So from the start, We'll do one session on fire and forget on target afterwards. sure, it would be amazing if you could do that, really. You can start actually, I don't know from where we are supposed to take. Okay, so Dr. Deepak's question is how to choose and select abutments from stock to UCLA to customize. I think you have already addressed that. Select abutment from stock to UCLA to customize. It's again choice, case to case. Whenever you have to do screw retain, there you have to choose UCLA abutment, और because single unit में आपका DMLS नहीं हो पाएगा. ठीक है, सिंगल DMLS अगर आपको स्क्रू रिटेन करना है तो आपका मल्टीपल यूनिट में हो जाएगा. अगर सिंगल यूनिट में हेक्स टू हेक्स करना है तो आपको UCLA abutment चूज करना पड़ेगा, स्क्रू रिटेन. अगर आपको सीमेंट रिटेन करना है तो आपको स्टॉक अबटमेंट में आप स्क्रू रिटेन नहीं कर सकते हो. ठीक है. कस्टमाइज अबटमेंट, अगर आपका एंगुलेशन बहुत टेढ़ा टेढ़ा है, उसको आपको सीधा करना है तो आप कस्टमाइज अबटमेंट यूज करोगे. जैसे एंटीरियर में आपने इम्प्लांट बहुत टेढ़ा डाल दिया, we can have, if I can show you my face now because it's a question and answer. So एंटीरियर में अगर हमने इम्प्लांट ज्यादा टेढ़ा डाल उसका एंगल करेक्शन करना है, तो एंगल करेक्शन करने के बाद आपको मार्जिन भी प्रॉपर देनी है, तो आप कस्टम अबटमेंट सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें मार्जिन एंड टॉप कटिंग टाइप में आपका दांत हो और उसके ऊपर आपने नेक्स्ट टूथ लगाए. सो दिस इज फॉर सिंगल यूनिट. यू कैन Voice is dropping. नॉट क्लियर. I think वो mobile हिलाया, maybe that's why. ओके. So Yeah, now it's okay. एक मिनट मैं ऐसे कर लेता हूँ. हाँ, okay. So second question. So कस्टमाइज अबटमेंट, कौन सा अबटमेंट यूज करना है, आपका प्रोस्थेटिक ऑप्शन कौन सा देना है आपको, उसके ऊपर डिपेंड करता है. Next question. Sorry. Next question is that We have been taught that titanium is not compatible with ceramic, but weight is more with other cobalt, chromium, or castable metal. And what about newer material, graphene? So again, the current we have a ceramics which want to titanium. Vita का ceramic है, बहुत सारे ceramic है, सारी companies लेके आ रहे हैं. एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है एक ऑर्गन का सिंटरिंग. टाइटेनियम को अगर लेयरिंग करना है तो ऑर्गन सिंटरिंग इज नेसेसरी. दैट ऑर्गन सिंटरिंग फर्नेस इटसेल्फ वेरी कॉस्टली. इंडिया में एक ही इंस्टॉल्ड हुई है आरआर लैब के पास. सो दैट ऑर्गन सिंटरिंग अगर आप करते हो तो इट इज वेरी पॉसिबल टू डू ceramic layering over time. We actually don't need to keep this mobile here. We can, we can see your video, Dr. Swapnil. ठीक है.
So it is disturbing. ये box भी हम निकाल मोबाइल सकते बंद कर दो, चलेगा? हैं। हाँ चलेगा। ओके, मेरा वीडियो दिख रहा है। ओके, सो नहीं, मैं ये इसको close कर दूं। You can log out from this one so that someone else can log in maybe. ओके, तो अगर कुछ दिखाना पड़ेगा तो मुझे लगेगा ऑप्शन Okay, no worries. Okay, no worries. So printing of scan model is as good as PVS or monophase impression, or little less accuracy of printed model. नो, प्रिंटेड मॉडल, यस, दैट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। अभी ये जो है वो थोड़ा सा टेक्निक सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वाला एरिया में थोड़ा सा एक्साइट हो गया हूँ। द थिंग इज दैट मार्केट में आज देयर आर 3 ग्रेड्स ऑफ प्रिंटर। फर्स्ट और हॉबी ग्रेड प्रिंटर। हॉबी ग्रेड प्रिंटर मतलब 30-40 हजार में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। 70-80% लैब वर्क ऑन दैट हॉबी ग्रेड प्रिंटर ओनली। ओके, सेकंड थिंग इज प्रोफेशनल प्रिंटर। प्रोफेशनल प्रिंटर्स मींस उसमें एक्यूरेटा आता है, एक्यूरेटा सोल आता है, या फिर फॉर्मलैब्स आता है। सो दीज आर प्रोफेशनल ग्रेड प्रिंटर। बट ये प्रोफेशनल ग्रेड प्रिंटर जो होते हैं पर्सनल ग्रेड प्रोफेशनल प्रिंटर है। मतलब इसमें एक क्लिनिक का काम ज्यादा अच्छे से हो सकता है, इसके ऊपर ज्यादा ओवरलोड आप डाल नहीं सकते हो, ठीक है। थर्ड थिंग आर प्योरली प्रोफेशनल प्रिंटर। प्योरली प्रोफेशनल प्रिंटर बहुत कॉस्टली होते हैं। थर्ड थिंग इज दैट रेजिन। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। आप रेजिन कौन सी यूज करते हो? आज कॉम्पिटिटिव देयर आर इन द मार्केट, देयर आर मेनी रेजिन्स फ्रॉम 2000 टू 25,000। तो जितना रेजिन सस्ता हो जाएगा उसकी एक्यूरेसी उतनी खराब होगी, उतना आपका मॉडल खराब निकलेगा, उतनी एक्यूरेसी खराब निकलेगी। व्हाट जनरली वी डू, वी यूज एक्यूरेटा डिप्लो व्हिच इज अ कॉस्टलीस्ट प्रिंटर राइट नाउ इन द मार्केट। इट्स अ डायमंड ग्रेड प्रिंटर, जिसमें जो डायमंड के काम करते हैं ना, तो डायमंड लगाने के लिए उनको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी लगती है, तो वो डायमंड ग्रेड प्रिंटर होता है। तो दिस इज लाइक दैट डायमंड ग्रेड प्रिंटर, ये उसका आउटपुट है। सेकंड चीज क्या होती है, इससे फायदा क्या होता है? जब मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोलता हूँ कि पेशेंट के मुंह में कोपिंग ट्रायल लेने की जरूरत नहीं, जिक ट्रायल लेने की जरूरत नहीं, ये हमेशा मैं आपको बोलता हूँ। ये हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि पेशेंट के मुंह में जिक ट्रायल लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर ऑन करता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ बस। I will make you the host and then you can do that. हाँ, You are the host. okay, so I'll share your screen. So why I say कि we don't need to, we need PPT. This one. Share. One second. I'll share you one video बस, एक 2 मिनट का वीडियो रहेगा। इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हो प्रेजेंटेशन maximize कर। मोड में। हाँ। थैंक यू। So this is basically that 40 लाख जो डिप्लो प्रिंटर था, जो मोस्ट एक्यूरेट प्रिंटर है, उसका ये फर्स्ट आउटपुट है। तो द कोपिंग ट्रायल एंड जिक ट्रायल जो है वो 2 मिनट में हो गया था। सो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल फ्रॉम दैट प्रिंटर। So this is Byline Digital Analog. So जो मॉडल है वो इतना ज्यादा एक्यूरेट है। जो भी जिक ट्रायल या कोपिंग ट्रायल करना है हम मॉडल पे ही कर लेते हैं। अगर कुछ चेंजेस है तो डू इट ऑन दिस मॉडल ओनली। दिस इज सो मच एक्यूरेट। दिस इज नॉट द ओनली थिंग, वी हैव आवर ओन सेपरेट प्रोफाइल्स, वी हैव आवर ओन सेपरेट कैम सॉफ्टवेयर। बहुत हाई एंड कैम सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, बहुत हाई अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जनरली हम लोग 3 से 4 अलग अलग सॉफ्टवेयर आउटपुट लाने के लिए यूज करते हैं। ये कोपिंग ट्रायल, so you can see accurate fit on printed model. So ये होने के बाद और एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ, सेम इसका एक्सरे दिखाता हूँ। So this jig trials and all, everything done on models only. Because of that printer we can very well easily do it. And ये कोपिंग ट्रायल पेशेंट के मुंह में, सेम पेशेंट का, and this is to whom
डॉक्टर विश्वास मदान मेरे फ्रेंड है, तो उनके पास किया था. So this is a X-ray of that patient. So the comment itself says it all. Nothing more to add. Okay, so it's a 1 minute sitting and aesthetics and all, everything is all because of the printer and protocols and whatever camps or fire and forget protocol. These are totally a little bit. I cannot tell you more about those things, the internal things. That's a trade secret. Okay. Thank you, Now, Dr. Swapnil. We will, can you make me the host, or have you anything else I'll to make share? you host. No, I'll make you host. Thank you. Make a host. I'm the host? Yes. Okay, thank you. So we'll be taking one last question for the day. I'm sorry, I'm not able to take all the questions because we are running short of time. Maybe we can have one more lecture by Dr. Swapnil again from RR Lab whenever he is again in Hyderabad. So the last question I would like to ask you is that by Dr. Shardul, his question is that how is that your protocol says alginate is okay when polyether is the gold standard? Any issues you faced with alginate? Sir, no, sir. We don't face any issue with alginate, sir. If poured on the time, we don't face any issue. The pouring is a key for alginate, sir. No book says alginate takes a very bad impression or you cannot use the alginate for any impression. इम्प्लांट के लिए जनरल प्रोटोकॉल्स में नहीं है, बट जनरली वी फाउंड दैट द अल्जिनेट में ड्रैग कम आते, इसमें ड्रैग ज्यादा आते हैं. पट्टी इंप्रेशन में ड्रैग ज्यादा आते हैं थोड़े. Perfect. So it's 11 o'clock and I think we have to end today's session, unfortunately. I know there are many questions unanswered. Even Dr. Swapnil has so much knowledge to share. But looking at the time, I think we have already exceeded by half an hour. So I would like to thank Dr. Swapnil on behalf of European Center of Oral Implantology. And I would also like to thank RR Dental Lab for this amazing lecture, this informative lecture. I'm sure many doubts from all of us have been cleared. And of course, we will have one more session if possible. So thank you so much. And I also want to thank each one of you because it is 11 in the night and we still have 84 participants. It is just amazing and commendable. I want to acknowledge each one of you. It shows that how dedicated each one of you are in learning and improving. So thank you so much. Thank you on behalf of everybody, on Dr. Swapnil, Dr. and Mr. Ramana Reddy. And again, if Mr. Ramana could address everybody, because there are a lot of questions that are you going to be in Pune? Are you going to be in Mumbai? Are you going to be in Delhi? So it would be nice if you could come and, share with everybody. Everybody share their number so we can address them personally. So we'll see all these questions and address them personally. Sure. And if Mr. Ramana could tell everybody, if this Okay. lab, or you can share, if Ramana will take the chair. So if your service is going to be there in Pune, Mumbai, Delhi, if people want to send you work, how are they supposed to do it? No, madam, we made it very simple. Without any intraoral scanner, they can take impression and they can able to send us. Recently, we started our. Your voice is dropping. Recently, we started our scanner services in Mumbai. With fire and forget, without scanner services, they can take the impression and send us. So they are supposed to courier it to you, basically. Right Yes, now, ma'am. that is the option available. Yes, so they madam. courier it and you courier it back to them. Yeah, we will deliver within a day. Wow, that's Transportation amazing. may take some time, but we can work anywhere in India. No problem. Perfect. So can I request somebody from your team to just drop in the number in the chat box if they want to connect with RR Lab? They can Sure. directly call on that number. Yeah, madam. Just now we are sharing the numbers, contact numbers. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, madam. Thanks for allowing us to share our knowledge and our. It was a great experience. And I also remember when I'd come to Hyderabad, you have such a big lab.
And you were so generous and kind to show me each and every step that happens in your lab, all your milling machines. It is just fantabulous. Thank you. Yeah, we are still working very committedly and focusedly to develop. Yes, many I things. know how hard you and Swapnil, you have been working on this fire and forget and developing your own scan bodies. It is amazing. Yes, yes, madam. I have a wonderful team, almost 70, 80 people working very committedly to make all these things possible. And wholeheartedly, I thanks each and every participants who are here and listen our presentation. Yes, and if possible, if we could have one more session, on fire and forget, because I'm sure after listening to this, many people are going to have many doubts. They're going to be full of doubts. We developed one more concept called on target also, madam. That will going to be a more advantage for all dentists. It will be better than fire and forget. Yeah. And we are also So going to have a Dr. Swapnil's lecture or a course in Pune soon on fire and forget. yeah, if it is fire and forget, will come anytime, madam. Awesome. Awesome. Thank you so much. Thank you so Thank- much, thank you, everybody. madam. Thank you, madam. Thanks for all the participants who stayed very late in the night and listened Yes. our. Thank you. Bye, everybody. Bye, Dr. Swapnil. Good night. Thank you so much. Good. Good night, everybody.